सेल्फ इंट्रोडक्शन सभी लोग करवा दें। अगर जो मैं आपको सबको कह रहा हूँ कि भी 3 कोई ऐसी चीज़ें अपने बारे में बता दें, तो मैं अपने से शुरू करता हूँ। मैं शाहिद अनवर हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। ये मेरे स्टूडेंट हैं बड़े प्यारे, इनके साथ ही मैंने ये शुरू किया प्रोजेक्ट। एक पैशन तो यही है, पैरेलल लर्निंग स्पेस। दूसरा लर्निंग फ्रॉम लाइफ, जिसको मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुलाइज अब किया है, लेकिन ये है कि मुझे मज़ा आता है लोगों को एक्सप्लोर करने में, उनकी कहानियाँ सुनने में, और नई जगह एक्सप्लोर करने में भी बहुत मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शाहब इदरीस है, बीएस इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर कायद आज़म यूनिवर्सिटी, और अब थर्ड सेमेस्टर हो जाएगा। मेरा तल्लुक आज़ाद जम्मू कश्मीर से है। इवेलुएशन जो है वो मुझे बड़ा पसंद है, लोगों को इवेलुएट करना, और देन लीडरशिप में किसी भी चीज़ को लीड करने में बड़ा ही मज़ा आता है, मतलब इट्स काइंड ऑफ माई पैशन। और देन आई लाइक बुक रीडिंग। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा सर्टिफाई करूंगा। इसने जो डॉक्टर साहब हमने एक एक्टिविटी की थी क्लास में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, हमने क्लास का एक साइन किया था। वो एक पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ओके फाइन। उसमें ये चीफ जस्टिस थे, इनका जो एक्टिविटी में रोल था, और इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और बिल्कुल मतलब ही इज राइट टू से दिस। Excellent. Assalamu alaikum, ma'am. My name is Mahanur Fatma, and I am in third semester of BS Economics, Qaid Azam University. Nice. So the things I like to do the most is reading and writing, especially in writing. When I read something, especially a fiction book, so uske jo characters hote hain, I like to do their analysis and make my own characters in specific stories. So I like to write fiction in that. Secondly, I like to explore areas, different countries and old buildings. And thirdly, I like to do some gardening in my home. Nice. Yeah, in a way I have my own mint plant. वो मेरा favorite है, उसकी मैं सबसे ज़्यादा Wow. करती हूँ। Very good. मुझे वही अच्छा लगता है। So these are all mostly things I do. So thank you. Assalamu alaikum. I'm a senior at Qaid Azam University. मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने I went to US for an exchange year. उसके बाद मैंने A levels किया और फिर Qaid Azam University. So it's like I've been in complicated places. बस यहाँ वहाँ से होके यहाँ तक पहुँची हूँ। और I as far as 3 things that define me, I think I'm good with words. Whether it's in writing, poetry या बात करना, और कभी-कभी ये चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देता है और कभी आसान कर देता है, and it's fun to see. और उसके बाद I think I'm emotionally मैं मतलब I like this about me. I think emotional intelligence I lack in many areas, but emotionally I'm very strong. और उसके अलावा I like to go for new experiences and explore cultures. I'm from Kashmir basically, but I've lived here. So and then I went for an exchange year to a different country. तो इस तरह already काफ़ी realize हुआ है कि how much differences languages make and cultures make, and how life can be totally different at one place when you're speaking one language and the other. So that's basically. अच्छा, सोबिया के हवाले से काफ़ी चीज़ें ऐड करने वाली है। सोबिया ने एक रिव्यू बहुत मज़े का किया था, और दूसरी सोबिया आपकी तरह ना जिहाद पे भी बिलीव करती है। कोई फेमिनिज्म के खिलाफ बात करके जाए कहाँ। सही बात है। Very good. Assalamu alaikum. My name is Denise Asmat, and I'm a student of Qaid Azam BS Economics third semester. The politics about me is that I personally feel like मैं अंदर कोई talent नहीं है, but I used to do debates and speeches, and currently I'm a very pessimistic person, so I'm currently fighting that fact about myself with my own self. Good. Assalamu alaikum. My name is Shahriyar Muhammad Khan, and I'm from Mardan, and I have done my O levels and A levels from Beacon House, and then I am currently a student of BS Economics, third semester at the Qaid Azam University Islamabad. And I'm also doing ACCA along with my bachelor's degree.
So it is kind of a double major for me. And I'm a web designer and web developer. Assalamu alaikum, sir. Well, Then my name is Avesik College. I'm from Gilgit-Baltistan. I'm a senior student at Nigerian University doing my bachelor's in economics. The three interests that I have is, first of all, I would say I have a keen interest in business studies. Then I like to travel a lot. I like to visit different places. Then the third one is reading. I like to read philosophy. Because I have uh, kind of, I'm a non-believer actually. That's how I would find myself. इंटरेस्टिंग। वैसे मुझे पता चला आजकल कोई काम भी कर रहे हो आप, कोई कंपनी बनाई है? यस एक्चुअली मैं दो कंपनी चला रहे हैं। तो एक ऑनलाइन वेबसाइट है, दूसरी जो काम कर रहे हैं वो एक ट्रैवल कंपनी ही है, लेकिन वो भी ऑनलाइन ही है। तकरीबन उसकी वेबसाइट पे काम हो रहा है, एक का तो कंप्लीट हो चुका है, एक वेबसाइट रनिंग पे है, दैट इज कॉल्ड ju.tk, KUUU.tk। तो दैट्स अ रिटेल स्टोर काइंड ऑनलाइन। बट दूसरी ये कंपनी है सर जिस ट्रिप्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, काम करने का शौक है, तो वो भी अंडर प्रोसेस है सर। इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी। Assalamualaikum. I'm Barira Samsat from Rawalpindi, and I'm in my final year of BS Economics. And I include my merits and demerits in my introduction too. I feel like I am proactive in workplace, and when I'm assigned something, I simply don't work to meet its requirement, but I go beyond that, and I try to analyze different things, and I try to research on them, and finally present my work in like I feel like I'm a perfectionist in some way. And the reason why I've joined this society is because of one of my demerits, that I'm not confident enough and I lack communication skills. Like I do not usually try to convey my ideas to other people. But now that I have completed 3 years of my bachelor's degree, I feel like I should have joined some platform where I need to where I need to express myself. So that's the only reason, that and convey my ideas to other people, so that I'd learn myself, as well as I'd help others to learn. So that's all. Thank you so much. Good, great. इसमें तो कहीं नहीं लगता कि आपके कम्युनिकेशन बोलते में तो कहीं नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शान है और मैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रही हूँ। और मेरी 3 अच्छी चीज़ें ये है कि मैं अच्छा लिखती हूँ, और जो कि मुझे लगता है, और कुछ लोग भी कहते हैं और पढ़ने का मुझे शौक़ है, और मुझे सोचने का भी शौक़ है काफ़ी। मैं चीज़ों को रिलेट करती हूँ उनको पढ़ने के बाद, रिफ्लेक्ट करने का। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि थिंकिंग से चीज़ें ओवर थिंकिंग की तरफ चली जाती हैं और वो मसला बन जाती है। तो ये एक मेरिट भी है और डीमेरिट भी है मेरा। तो सही है। Assalamualaikum. I'm Samira Osman from Islamabad. I'm a senior year student of economics in Qaid Azam University. I love listening to music and exploring music. I love taking pictures. I love reading poetry. Yeah, that's it. Assalamualaikum, ma'am. I'm Suskina. I am right now a final year student at Qaid Azam University, and I'm doing my economics. Currently, I'm involved with organization which is working on women's maternity and basically early childhood development. We work in slum areas of Islamabad and also DG Khan and Lahore. And I love to meet people and I love to converse with them. Culture attracts me so much. I'm so much interested and passionate about photojournalism and films. So I love to talk more about films and storytelling. And yes, that's it. Good evening, all of you. My name is Irfanul Haq.
I'm a third semester student of English literature at FC College Lahore. And the reason I have joined this organization is that I have noticed that most of the co-curricular activities have been snapped around in the government sector of Pakistan. So people are not, and students are not interested in the activities which develop their moral side and physical side. And the only motive of them is to score the grades. So to develop their other side is as necessary as their educational side. That's why I focused on this perspective, so that I should engage with this organization, so that I should share what I have and what they can give me. So other than that, I have been part of various organizations within the institution, such as Intermediate Social Sciences Club. I was the president of that society. Now I am the part of different societies such as Journalism Society and Debating Society. Other than that, I have done my internship at Roshan Kal Kamyab Jawan program and other internships like that. So the basic motive of my attendance here is also that the physical and mental capabilities of students must be enhanced alongside with their educational skills. I'm a student of FSC. I'm in second year. I just gave my first year exam, and I'm currently studying computer science, and I want to pursue journalism. I'm very passionate about journalism, and yeah, that's all. Hello, Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। जी फातिमा। My name is, मेरा नाम फातिमा सरवल है और मैं सेकंड ईयर में हूँ। FAIT की स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए हैं और आज को सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ और आप सबके साथ। तो जो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप पहली स्लाइड पे देखें तो अपने बुढ़ापे की वजह से अपने इंट्रोडक्शन के भी पॉइंट्स नोट कर रखे हैं कि इंट्रोडक्शन में भी कुछ भूलना चाहती। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जब भी मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती थी तो मोस्टली मैं ये गलती करती थी कि मैं अपना सिर्फ एजुकेशन और करियर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन करवाया करती थी, और फिर मुझे लगा कि हमारी पर्सनैलिटी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता इफ़ वी डू नॉट फर्स्ट थिंक अबाउट कि मैं ज़िंदगी क्या गुजार रही हूँ। शाहिद साहब ने शुरू में कहा कि अफशां बहुत मसरूफ़ होती हैं लेकिन फिर भी इनकार नहीं करती। तो ये जो सबसे पहली लाइन मैंने लिख रखी है स्लाइड के ऊपर, ये इस वक्त मेरे ज़िंदगी को डिफ़ाइन करने के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है। अ सिंगल फीमेल यूनिवर्सिटी टीचर लिविंग इन इस्लामाबाद। मेरी पर्सनैलिटी इस वक्त जो कुछ नज़र आएगी वो इन सब बातों से जुड़ी हुई है। एक तो ये कि मैं सिंगल हूँ, आई डोंट हैव अ फैमिली एज सच हु आर डिपेंडेंट ऑन मी, तो इसलिए मैं बहुत सारा काम कर सकती हूँ, बहुत सारे लोगों से मिल सकती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकती हूँ जो शायद फैमिली ओरिएंटेड लोग नहीं कर पाते होंगे। आई एम अ फीमेल और मैं इसको अपनी स्ट्रेंथ के तौर पे लेती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे फीमेल पैदा किया, और जब वो आपको किसी भी जेंडर में पैदा करता है तो उस जेंडर की स्ट्रेंथ्स आपके अंदर होती हैं और आपने उनको रिकग्नाइज करना होता है। एंड देन बाय द वर्च्यू ऑफ टाइम मैं यूनिवर्सिटी टीचर बन गई। यूनिवर्सिटी टीचर होना बजाते खुद एक बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है कि आप मैं पाकिस्तान में कहती हूँ कि बाज़ लफ्ज़ों को हमने बिल्कुल समझा नहीं है। यूनिवर्सिटी इज़ अ ह्यूज वर्ड एंड इट इज़ अ स्मॉल वर्ल्ड इन इटसेल्फ। यूनिवर्स से निकला हुआ ये लफ्ज़ यूनिवर्सिटी, जिन्होंने ये नाम रखा था इस इदारे का या इसको ये यूनिवर्सिटी कहना शुरू किया था, अगर आप उस पर जाएँ तो समझ में आती है कि अच्छा it's a small universe in itself। और ये बहुत सारे लोग जिनको हम फैकल्टी कहते हैं, नॉन फैकल्टी कहते हैं, ये लोग मिलके एक छोटी सी दुनिया तख्लीक कर देते हैं और उस दुनिया में सोच पैदा होती है। अभी किसी ने कहा था मुझे सोचने का शौक है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और देन यूनिवर्सिटी टीचर आपको एक और जिम्मेदारी पे जाके खड़ा कर देता है। यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल अगर आप इस लेवल पे मौजूद। देन लिविंग इन इस्लामाबाद इज़ अ प्रिविलेज आई वुड से, क्योंकि मैं दुनिया के कोई 13 ममालिक में जा चुकी हूँ, 4 मुल्कों में बशमूल पाकिस्तान रह चुकी हूँ। तो जब मैं मुख्तलिफ शहरों में रही हूँ, मुख्तलिफ दुनिया देखी है, तो मुझे पता चला है कि
इस्लामाबाद में रहने वाले लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं। मैं पाकिस्तान नहीं सिर्फ कह रही, मैं इस्लामाबाद स्पेसिफिक कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत कुछ, और अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए बड़े खूबसूरत मनाजिर, बहुत प्यारी एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, सब कुछ अवेलेबल है। और that's again something that I add to my introduction, क्योंकि आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो करते हैं, उसमें ये सारी बातें एड अप होती हैं। And then comes my father and mother, both have passed away, and my father was a हकीम, हर्बल मेडिसिन में उन्होंने बाकायदा डिग्री भी की हुई थी और वो प्रैक्टिस भी करते थे, और वो पिछले 5-6 नस्लों से हकीम चले आ रहे थे। एंड माई मदर वॉज अ टीचर एंड अ वेरी पैशनेट टीचर, और मैं हमेशा हर फोरम पे बताती हूँ कि व्हेन शी रिजाइंड फ्रॉम डिविजनल पब्लिक स्कूल, तो किसी ने उनको कहा कि आपको अफसोस नहीं हो रहा, तो ये जुमला उनका मेरे थीसिस की डेडिकेशन में भी लिखा हुआ है कि माय मदर सेड कि मुझे अफसोस इसलिए नहीं हो रहा कि मैंने अपनी बेटी इस प्रोफेशन को दे दी है। तो दैट्स माय इंट्रोडक्शन। मैं उसको ओन करती हूँ कि हाँ, मेरी माँ ने मुझे अपनी जगह खड़ा कर दिया था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक उस जगह पे बड़े पक्के पैरी खड़ी। देन कम्स माय 2 ब्रदर्स हु आर पोल्स अपार्ट, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। इस वक्त एक इंग्लैंड में और एक पाकिस्तान में। एक प्योर ईस्टर्न कंजर्वेटिव मेल है पाकिस्तानी, एक ट्रांसफॉर्म्ड नहीं मैं कहूँगी, बचपन से ही बड़ा डिफरेंट था, और फिर वो यूके चला गया तो फिर उसमें मजीद निखार आता चला गया, और वो एक बिल्कुल लिबरल मेल है जो कि अब डुअल नेशनैलिटी रखता है, पाकिस्तानी एंड यूके। देन माय एजुकेशन, मैं प्री इंजीनियरिंग से शुरू हुई बड़ी खुशी खुशी से कि मैं इंजीनियर बनने जा रही हूँ, और फिर पता चला कि रावलपिंडी में उस वक्त कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो आई कैन नॉट गो इन अ यूनिवर्सिटी अवे फ्रॉम माई सिटी। तो फिर उस वक्त वालदैन ने नहीं जाने दिया, तो फिर मैं बीएससी कर ली मैंने, फिर एमएससी कर ली, फिर आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो फिर एजुकेशनल प्लानिंग पढ़ा, और फिर मैं एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी स्टडीज़ ही की होके रह गई, क्योंकि फिर मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, और यहाँ पर इस वक्त मैं एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी स्टडीज़ के डिपार्टमेंट को हेड कर रही हूँ। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मैंने अगर इस ज़िंदगी में मुमकिन हो सका अपनी पूरी काविश कर डालनी है, जिस पे मेरे कुछ दोस्त मुझसे बड़े नाला हैं, परेशान हैं, लेकिन मैंने ये काविश कर डालनी है कि बीइंग अ फीमेल इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी विच इज़ माने या ना माने मेल डोमिनेटेड, तो मैंने अपने प्रोफेशन की पीक तक इंशाल्लाह जाना है अगर ज़िंदगी रही तो। और मैंने ये गोल कर रखा है अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए। फिर मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ गोल कर रखे हैं कि मुझे ऐसे कोर्सेज डिज़ाइन करने हैं, ऐसी रिसर्च कंडक्ट करवानी है, और ऐसी राइटिंग और उसके थिंकिंग प्रोसेसेस में डले रहना है, और लोगों को भी डालना है जो कि इस खित्ते में, इस मुल्क के लोगों के लिए और इस खित्ते के लोगों के लिए एक यूजफुल डिस्कोर्स हो। हम इस खित्ते में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी लेके बैठे हैं एशिया के अंदर, तो हमें हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है कि आने वाली सदियों में आप उनको सस्टेनेबल गोल से जोड़ लें, आप इसको किसी भी चीज़ से जोड़ लें, आने वाले वक्तों में क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो इन इंसानों ने बहुत मेजर रोल प्ले करना है, and we need to develop them into human beings who are responsible and worthy enough. अब मैं यहाँ रुकती हूँ, और आई वुड लाइक कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मेरे इंट्रोडक्शन से, मेरी ज़ात के बारे में या मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में, या कोई और चीज़ पूछना चाहते हैं, प्लीज डू। मैं बरीरा सर, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि हैव यू एवर फेस्ड any resistance or objection from your family or your relatives regarding this thing कि like being हमारा एक ये stereotype है कि being a female आपको bachelor's के बाद या बहुत भी होगा, आप अपनी पढ़ाई complete करने के बाद you have to get married, so haven't they asked कि you have to be into such things
कि आप जो है वो बीइंग फीमेल आप बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, तो आपको कभी किसी ने इस हवाले से कोई इशू फेस किया आपने एवर इन योर लाइफ? होता ये है कि इट डिपेंड्स अ लॉट कि आपका और आपकी फैमिली का इंटरेक्शन कैसा है। एक चीज़ जो मैं बार बार बताती हूँ, हमारी फैमिली में डायलॉग बहुत ज़्यादा था और बड़ा ओपन डायलॉग था, एंड वी यूज टू टॉक अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। देयर वाज अ टाइम जब मैं शादी को बड़ा फैंटेसाइज करती थी और बिल्कुल एक आम बच्ची की तरह मेरा भी ख्याल था कि बस मैंने ग्रेजुएशन करनी है और शादी कर लेनी है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात वाक़यात वक्त जैसे जैसे आपको चीज़ें सिखाता है, तो आई फेल्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली ऑल्सो रियलाइज्ड इट कि आई वॉज मोर इनटू करियर एंड एजुकेशन एंड एवरीथिंग। इनिशियली आपको क्या करना पड़ता है, इनिशियली आपको मोहलत मांगनी पड़ती है खानदान से और मुआशरे से कि मुझे पढ़ लेने दो उसके बाद करते हैं, फिर मुझे थोड़ा और पढ़ लेने दो फिर उसके बाद करते हैं, फिर थोड़ा और पढ़ लेने दो तो उसके बाद करते हैं। तो मुझे भी इसी तरह से मोहलत मांगनी पड़ी और वो अगेन बीइंग वेरी लकी कि मुझे वो मोहलत मिलती गई। और कुछ आपकी जब नीयत बड़ी खालिस होती है किसी एक काम के लिए, तो फिर उसके लिए आप खुद भी रास्ते तलाश करते हैं और अल्लाह मियाँ भी आपको रास्ते देता जाता है। माई मदर वॉज वेरी सपोर्टिव एंड माई ब्रदर हु लिव्स इन इंग्लैंड। ये दो लोग मैं जिंदगी में जरूर एक्नॉलेज करूंगी कि ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने फैमिली प्रेशर भी, सोशल प्रेशर्स भी, ज्यादा चीजें खुद बर्दाश्त करके मेरे तक नहीं आने दी, और वो मेरे लिए मेरे साथ खड़े होके या इवन मेरी गैर हाजिरी में भी मेरे लिए बहुत सपोर्टिव थे और कहते थे कि वो जो करना चाहती है उसको करने दो, एंड इट्स हर लाइफ एंड इट शुड बी हर डिसीजन। So, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। यू आर वेरी राइट इन योर क्वेश्चन। इन सच अ सोसाइटी जहाँ सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है, मेल्स पे है लेकिन फीमेल्स पे बहुत ज्यादा है कि जल्दी से जल्दी शादी करनी है, तो वहां पर उस प्रेशर को फेस करना और उसमें से एमिकेबली गुजरना कि आज भी मैं अपनी खानदान का फेवरेट बच्चा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे खानदान ने को मुझे डिसोन कर दिया और मेरी हरकतों की वजह से। मैं अभी भी अपने बुजुर्गों का सबसे लाडला बच्चा हूँ, सबसे फेवरेट बच्चा हूँ। और जो जो जहां जहां दुनिया में बैठा है वो मुझे सुबह सुबह मैसेजेस भेजता है, मेरे अंकल्स भी, मेरे आंटीज भी, कि तुम जो कुछ कर रही हो बड़ा अच्छा कर रही हो और करती रहो। एक्चुअली यही बेसिकली मतलब जो मोस्टली जो फीमेल्स अपना टैलेंट शो करते हुए लाइक वो घबराती हैं या वो उनको मैं एक बात बताऊं आपको ना, उस टफ पीरियड से टफ होके गुजरना पड़ता है। हाँ, वो टफ पीरियड आता है, ये नहीं कि वो हम पे नहीं आया था, ये नहीं कि हमने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया होगा या हमने उसको 4 साल बातें नहीं सुनी होगी, अपने सगे अब्बा की भी सुनी थी, ठीक है। लेकिन उसमें से बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व से गुजरना पड़ता है इफ यू आर रियली हैविंग अ क्लियर गोल, और आप ये साबित कर सकें कि यार कोई और वजह नहीं है, कोई और इशू नहीं है, ये वजह है और मैं इस लॉजिक के वजह से इस तरह से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो फिर आहिस्ता 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 पीपल डू अंडरस्टैंड। दो बातें जो मैंने की हैं, एक तो डायलॉग, बात करने से मत झिझके, इनकार भी करना है तो उसकी तफसील बताएं, और किसी ने अगर आपको इनकार किया तो उससे तफसील पूछे कि आप मुझे क्यों कह रहे हो, ताकि डायलॉग हो। जब डायलॉग हो तो लेयर्स खुलती हैं। डॉक्टर साहब, जी सर। जो इनकार है ना, इनकार करने का स्किल विदाउट अनोइंग द अदर पीपल, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे हमारे जैसी सोसाइटी में। और जो मैंने कहा ना कि मेरे बुजुर्ग आज भी मुझसे अनॉयड नहीं है, तो मैंने उनमें से किसी की डिसओबीडियंस नहीं की है। जो शख्स जो बात मुझे मनाना चाहता था या मुझे कहना चाहता था, मैं उसके पास बैठ के उसके साथ कम्युनिकेशन करती थी। और अभी हाल ही में मेरे मामू की डेथ हुई है। ही वाज वन ऑफ द पीपल इन द फैमिली जिनको कोई इनकार नहीं करता था किसी बात से। तो आई यूज्ड टू सिट विद हिम एंड टॉक टू हिम कि आप मुझे क्या कह रहे हैं और मैं आपको क्या कह रही हूँ, दोनों एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये आपने मतलब कहाँ से सीखा था? ये मैं क्रेडिट दूंगी अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने डाइनिंग टेबल टॉक ठीक को एक ट्रेडिशन बना रखा था। हम दिन का खाना कोई भी कहीं भी खाए, हमने रात का खाना इकट्ठे खाना होता था।
और उस खाने पर गुफ्तगू शुरू होती थी और आप यकीन करें कि बाज़ दफ़ा रात 12-12 बजे तक हम उठते नहीं थे, तो वालदा कई दफ़ा कहती थी कि हुन दोमा चो कोई एक मान जाए ताकि उठ जाओ। तो वो कोई ना कोई डिबेट ऐसी शुरू हो जाती थी, लेकिन दैट वाज सो गुड एंड सच अ हेल्दी एक्सरसाइज कि अगर हम फैमिली में नहीं कर सकते तो फ्रेंड्स में नहीं, मतलब फाइंडिंग योर एलिमेंट से ही अगर आप घबरा गए तो फिर तो कुछ करने का चांस ही नहीं। अच्छा, फाइंडिंग योर एलिमेंट का हिस्सा है। जब हम आखिर में पहुंचेंगे ना, तो ये जो बात अभी बच्चे ने की है ना, ये फाइंडिंग योर एलिमेंट का हिस्सा है। हाउ एंड व्हेन शुड यू डिसाइड टू गेट मैरिड, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ फाइंडिंग योर एलिमेंट। तब ये फैसला कर डालना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा है और आई फाउंड माय टाइप। ठीक है, ओके जी। फाइंडिंग योर एलिमेंट जो टाइटल है, ये बेसिकली केन रॉबिन्सन की एक बुक है। उनकी और भी किताबें होंगी, लेकिन जो उनकी पहली किताब मैंने पढ़ी थी, ये शायद वो उनकी पहली ही किताब थी, ये मुझे नहीं पता। एनीवे, जो उनकी पहली किताब मैंने पढ़ी थी वो एलिमेंट थी, और फिर दूसरी किताब ये थी फाइंडिंग योर एलिमेंट, हाउ टू डिस्कवर योर टैलेंट्स एंड पैशन एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और मुझे ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में, हालांकि मैं मिड करियर थी जब मैंने ये बुक पढ़ी थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आया था केन रॉबिन्सन की ये बुक पढ़ के। केन रॉबिन्सन ने बहुत अरसे तक यूके के गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम के साथ काम किया है। उसके बाद उन्होंने यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में और फिर कुछ अर्सा ऑस्ट्रेलिया में भी एजुकेशन सिस्टम्स के ऊपर काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज की हैं और बहुत सा काम किया है। उनकी एक टेड टॉक थी 2006 में, जो कि बहुत बहुत फेमस हुई थी, एंड दैट वाज डू स्कूल स्किल क्रिएटिविटी। और उसमें ही सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेड हिज थ्योरी दैट स्कूल स्किल क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी को पहले डिफाइन बड़े मज़े से किया उन्होंने, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि 10 to 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में किस तरह से एजुकेशन हमारे साथ ख़ास तरह का ट्रीटमेंट करती है, और हम अपनी ही अंदर मौजूद नेचुरल क्रिएटिविटी को मार डालते हैं। और वो इसलिए हम मार डालते हैं क्योंकि हम स्कूल में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और जिस पैटर्न पे हमें स्कूल चला रहा होता है, हमारे पेरेंट्स भी हमें पुश करते हैं कि आप उस पैटर्न पे चलें जिस पैटर्न पे आपको स्कूल चला रहा है। जबकि स्कूल इज डिजाइंड इन अ वे दैट वन साइज फिट्स ऑल, और इंसान बड़ा डाइवर्स पैदा हुआ है। हर इंसान की अपनी कुछ खास चीज़ें हैं जो मिलके उसकी एक पूरी पर्सनैलिटी बना रही होती हैं। जिसने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स तो लाखों होंगे दुनिया में, लेकिन अफशा हुमा तो एक ही होगी। तो फिर अफशा हुमा को वही रहने देना, ये स्कूल के बस की बात नहीं रहती, क्योंकि स्कूल सबको एक मॉडल पे ट्रीट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो बाय द एंड ऑफ द स्कूल ईयर्स, जो कि K to 12 कहलाते हैं, किंडरगार्टन से लेके 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हायर सेकेंडरी तक, उसके ऊपर क्रिटिक है केन रॉबिन्सन की। और फिर उनकी ये जो बुक है, इसमें से मैं सिर्फ 2-3 पीसेज आपको शेयर करूंगी और फिर हम अपनी एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। फाइंडिंग योर एलिमेंट इज एसेंशियल टू योर वेल बीइंग। अब मुझे ये लफ्ज वेल बीइंग बड़ा पसंद है, और जब मैं वेल बीइंग कहती हूँ तो मैं हमेशा अपनी ऑडियंस से कहती हूँ कि दिस इज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। आपकी वेल बीइंग, सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज करना ज़रूरी है कि हम एक फिजिकल बॉडी हैं, और हमारी वेल बीइंग शुरू होती है हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस से, और हमारी अपने तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं फिजिकली जैसी भी दिखती हूँ, और मेरी फिजिक जैसी भी है, आई शुड बी हैप्पी अबाउट इट, and if I want to develop it further, I should be consciously doing it without foregoing my well-being. मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइट ना करूं, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी सर्जरीज ना करवाऊं, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रंग गोरा करने की क्रीमें इस्तेमाल ना करूं। ये सब क्या है? ये मेरी तरफ एक नेगेटिव एटीट्यूड है। तो मुझे सबसे पहले तो ये चाहिए कि मैं अपनी वेलबींग शुरू करूं अपनी फिजिकल बॉडी से। मुझे कॉन्शियस होना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, मुझे कॉन्शियस होना चाहिए अपने इस जिस्म की प्रोटेक्शन के लिए, फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए। मुझे हेल्थ और सेफ्टी मेरी बहुत सारी बातों में आता है। सो दैट्स वन पार्ट ऑफ वेलबींग, एंड देन कम्स माय साइकोलॉजिकल वेलबींग। और साइकोलॉजिकल वेलबींग एक तरफ हेल्थ सेफ्टी है, और साइकोलॉजिकल वेलबींग
मैं जो वर्ड चूज करती हूँ उसके लिए वो है हैप्पीनेस. I should remain happy in longer periods of time and I should remain sad or upset or disturbed in shorter periods of time. तो फिर मैं एक हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ गुजार रही होंगी. ऐसा नहीं होगा कि मुझे जिंदगी में कभी दुख ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि तकलीफ ही नहीं होगी, लेकिन आई शुड बी वर्किंग टू रिड्यूस दैट पीरियड so that I remain happy and healthy. So finding your element is essential for your well-being. One part. And second part is ultimate success. Now define your own success. Please do not define success by any other person or by any other standard. आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए. आप सक्सेसफुल अपने आप को किस दिन समझेंगे या कब समझेंगे, नॉट नेसेसरली वंस इन अ लाइफ, लेकिन आप क्या क्या अचीव करते जाएंगे. मैं एक छोटी सी चीज शेयर करती हूँ कि पीएचडी की एक स्टूडेंट थी जो कि नहीं कर पा रही थी और साइनॉप्सिस से आगे नहीं जा पा रही थी या शायद फर्स्ट स्टेज से आगे पा रही थी. एनीवे, तो मैंने उसको कहा कि देखो यहाँ तक तो अपने आप को सेलिब्रेट करो ना, कितने लोग हैं जो यहाँ तक पहुंचते होंगे. सो पिक योर माइलस्टोन्स एंड टेल योरसेल्फ दिस इज सक्सेस, देन दिस इज सक्सेस, देन दिस इज सक्सेस, एंड कीप गोइंग ऑन. और जहां तक जा सको उसको एंजॉय कर लो. And then by implication to the health of our organizations and the effectiveness of our educational system. अब दूसरे हिस्से पे आते हैं. आप अकेले नहीं होते, आप अकेले अपनी वेलबींग और अपनी अल्टीमेट सक्सेस के जिम्मेदार नहीं होते. आपने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना है. बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स ने, बहुत से लोगों ने ये गलत फहमी डाल दी कि जी जॉब मत करना, ये तो आपकी क्रिएटिविटी को पहले एजुकेशन ने मारा फिर जॉब मार देगी. ओके फाइन, आप जॉब नहीं करोगे तो आप एंटरप्रेन्योरशिप करोगे, आप बिजनेस करोगे, आप अपना कोई काम शुरू कर दोगे, तो क्या उसमें लोग नहीं होंगे? उसमें भी लोग होंगे. द टैलेंट इज यू फाइंड योर एलिमेंट एंड देन यू कीप दैट अलाइव विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन. उस ऑर्गेनाइजेशन को आप ओन करते हो या कोई और ओन करता हो. बात यह है कि आप अपनी वेलबींग को और अपनी सक्सेस को क्लैरिटी से पहचानते हो और आपको ये पता हो कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हुए कैसे अपने आप को ग्रूम करते जाना है और डेवलप करते जाना है. एंड विद इन एजुकेशनल सिस्टम मुझे तो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल जिंदगी की तरह है. जैसे अभी मुझे किसी ने पूछा कि आपने प्रेशर फेस नहीं किया, तो हाँ मैंने प्रेशर फेस किया. आपने फिर भी शादी नहीं की? हाँ मैंने फिर भी शादी नहीं की. तो एग्जैक्टली यही दो जुमले हम कह सकते हैं कि आपने भी तो 12 साल एजुकेशन हासिल की, हाँ की, और आपने अपने टैलेंट नहीं बढ़ने दिए, हाँ हमने अपने टैलेंट नहीं. ये भी तो सक्सेस हो सकती है ना. सो थिंक अबाउट इट कि कैसे आप ड्यूरिंग एजुकेशन और ड्यूरिंग वर्क लाइफ कैसे अपने एलिमेंट के साथ जिंदा रहेंगे. Then comes these days, anyone whose real strengths lie outside the restricted field of academic work can find being at school a dispiriting experience and emerge from it wondering if they have any significant aptitudes at all. दो बातें हैं इसमें भी कि एक तो वो बच्चे जिनके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग टैलेंट्स हैं और वो उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, उनको एजुकेशन एक डिस्पिरिटिंग एक्सपीरियंस लगना लग जाता है, लेकिन वो उसमें से इमर्ज करते हैं और फिर वो सीखते हैं कि वो अपने सिग्निफिकेंट एप्टीट्यूड्स अगर कोई हैं तो उनके आगे कैसे बढ़ेंगे. नाउ बिफोर गोइंग ऑन टू द एक्टिविटी, मैं इस किताब के पहले सफ़े पे दी हुई पहली चीज़ हमेशा सुनाती हूँ और मुझे ये बड़े मज़े की लगती है, और फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूँगी, फिर हम एक्टिविटी शुरू करेंगे. इंट्रोडक्शन में बिल्कुल बिगिनिंग में ये केन रॉबिन्सन की किताब का पीस है. There are these two young fish swimming along and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, "Morning boys, how's the water?" And the two young fish swim on for a bit and then eventually one of them looks over at the other and goes, "What the hell is water?" यहाँ तक कोई क्वेश्चन? केन रॉबिन्सन की थ्योरी थोड़ी सी मैं सिर्फ आपको समझा रही थी एक्टिविटी से पहले. एनी क्वेश्चन? ठीक है जी.
अच्छा जी, केन रॉबिन्सन की थ्योरी दैट स्कूल्स कैन किल क्रिएटिविटी एंड देन हिज 2 बुक्स व्हिच टेल अस हाउ व्हाट इज योर एलिमेंट एंड हाउ टू फाइंड योर एलिमेंट। तो एलिमेंट सबसे अच्छा, पहले इसमें मेरा सवाल है डॉक्टर साहब, आपने पूछा था, आई एम सॉरी, ये लास्ट वर्कशॉप में भी एक ऑब्जर्वेशन आई थी, मैं थोड़ा सा उसके बारे में डाउटफुल हूँ, आप थोड़ा क्लियर कर दें कि क्या केन रॉबिन्सन जो है वो स्कूल स्ट्रक्चर को वो क्या उसके बारे में सुजेस्ट करता है प्रिसाइसली कि इसको खत्म कर दें, डिसमेंटल कर दें, रिप्लेस कर दें, क्या इस तरह की कोई उसने कहीं पे कोई ऐसी सजेशन दी? केन रॉबिन्सन को जितना मैंने पढ़ा है और समझा है, उन्होंने 2 चीजों पे काम किया है। एक पूरा डॉक्यूमेंट है यूरोपियन स्कूल एसोसिएशन का, जिसमें केन रॉबिन्सन उनकी सॉर्ट ऑफ जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके मेंबर थे, और ये 6 लोगों ने मेरा ख्याल है मिलके वो डॉक्यूमेंट तरतीब दिया हुआ है। अपनी इस थ्योरी के बाद 2006 में वो प्रेजेंट करने के बाद केन रॉबिन्सन ने उन मुल्कों के साथ काम किया है और उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म्स पे काम किया है। उन्होंने ये कभी भी कहीं भी स्टेट नहीं किया दैट यू शुड डीकंस्ट्रक्ट इट और समथिंग। उन्होंने कहा यू शुड रिफॉर्म इट, और उस रिफॉर्म के लिए उन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं कि क्लासरूम एंड बियॉन्ड क्लासरूम किस तरह की लर्निंग एनवायरनमेंट्स क्रिएट की जाएं ताकि बच्चों की जो पर्सनल टैलेंट है, वो हिडन टैलेंट है, उसको हम डिमोलिश ना कर सकें। ठीक। और दूसरी तरफ ये जो किताब है ना, ये जो किताब है ना, इसमें उन्होंने इंडिविजुअल्स को ये तरीका सॉर्ट ऑफ सिखा दिया दैट गोइंग थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, आइदर इट बी एन एजुकेशन एनवायरनमेंट और अ वर्क एनवायरनमेंट, आप खुद कैसे अपने एलिमेंट को पहचानेंगे और फिर उसको जिंदा रखेंगे और फिर उसको ग्रूम करेंगे। ठीक। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी समझने। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल छोटा सा ये था कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है और एक्सपीरियंस भी ये है, जो मैंने खुद सीखा एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, वो ये है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें मेरी अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके बाद कायद आज़म यूनिवर्सिटी में जो लर्निंग लास्टिंग जो मैं समझता हूँ वो है जो क्लासरूम से बाहर हुई है। ठीक है, वो एक्चुअली क्लासरूम में नहीं हुई। हाँ, उसको मैं बिल्कुल निगेट नहीं करता कि क्लासरूम का कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन उसके बाहर वाला जो रोल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे अपने एक्सपीरियंस। ठीक है, ठीक है। और दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे वो एफसी कॉलेज से नौजवान ने भी बात की थी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो टूल हैं जो हमें बहुत हद तक हेल्प आउट करती हैं कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस नौजवान में, इसमें ये टैलेंट है, इस स्टूडेंट में ये टैलेंट है, और उसमें वो एक इनफॉर्मल कनेक्टिविटी जो थी इंस्टीट्यूशन की स्टूडेंट के साथ वो होती थी, अब वो काफ़ी डिक्लाइन पे है। और यही जो मतलब कह लें कि सिचुएशन है जो स्पेस क्रिएट करती है पैरेलल लर्निंग स्पेस। बिल्कुल ठीक है, इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये ऐड करूंगी कि जब भी हम इस तरह की डिस्कशन करते हैं और आपके साथ या और जगहों पे भी बैठ के हमने ये बात की है, तो हम वाकई इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि नॉट नेसेसरीली कि क्लासरूम ही वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। बहुत मुमकिन है कि बियॉन्ड क्लासरूम जो लर्निंग हो रही हो विद इन इंस्टीट्यूशन बेशक हो रही हो, लेकिन बियॉन्ड क्लासरूम हो रही हो तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रही हूँ आपकी बात में कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो और वो किसी को करिकुलर एक्टिविटी का हिस्सा ना बनना चाहते हो। वी शुड कीप them in mind as well कि they should be free to choose for themselves। अगर वो क्लासरूम के अंदर अपना एलिमेंट तलाश कर लेते हैं और उसको लेके चल सकते हैं, तो वी शुड प्रोवाइड एक्टिविटीज इन क्लासरूम एज वेल। और अगर को करिकुलर एक्टिविटीज में जाके कोई बच्चा, मेरा भाई जो मेरे साथ होता था, जो इंग्लैंड जा चुका है, मेरी उसकी बहुत सारी एजुकेशनल एक्टिविटी भी इकट्ठी होती थी। हमने इवन बीएससी भी इकट्ठे किया, तो हम दोनों बहन भाइयों ने बहुत सा वक्त इकट्ठे गुजारा। और मैं एक बिल्कुल और तरह, मैं आपकी तरह मैं को करिकुलर एक्टिविटीज में अपने आप को डेवलप कर रही थी, और मुझे लगता था कि आई एम इन देयर व्हेन आई एम डूइंग एक्टिविटी।
और उसको ये लगता था कि मैं क्लासरूम एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल रहता हूँ, जैसे ही मुझे इस तरह के किसी सीन में डालते हैं तो मैं बिल्कुल डिस्कम्फर्ट में चला जाता हूँ, फिर जो मुझे आता होता है वो भी नहीं आता। तो ये हर बच्चा, अगेन एज आई सेड कि हम बहुत सी डाइवर्सिटी लेके पैदा हुए हैं, तो वी शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज आवरसेल्फ, कहाँ हम क्या कर सकते हैं और कहाँ हमें कोई साथी चाहिए हो शायद। फिर उसका एक दोस्त था, उसके साथ जब वो होता था तो उसके साथ वो को-करिकुलर एक्टिविटीज में भी बड़ा कंफर्टेबल था। So that matters a lot. जी जी बेटा मैं कुछ ऐड करना चाह रही थी यहाँ पे। एक्चुअली आई एम ऑफ द वांटेज पॉइंट दैट होम स्कूलिंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट प्राइमरी लेवल्स। मतलब एटलीस्ट 5th क्लास तक हमें होम स्कूलिंग इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि स्कूलिंग जो इन्वायरमेंट है हमारा करंटली वो बहुत ज्यादा, आई मीन इट्स टू रिजिड अबाउट adhering to the traditional एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो ये बहुत ज्यादा रिजिड है, इसलिए आई फील लाइक ये एक सोल्यूशन जो मेरे माइंड में इस टाइम पे आता है कि अगर जो है, जैसे हम कहते हैं कि व्हेन अ मदर इज एजुकेटेड शी एजुकेट्स द होल फैमिली। तो अगर हम एजुकेटेड मदर्स हैं हमारे पास, तो व्हाई कांट दे डू होम स्कूलिंग? तो बच्चों को मैं इसको बेटा दो तरह से आपके एड्रेस करती हूँ। पहली बात ये कि I totally agree to what you are saying, but the word that I agree with is introduce, do not impose. Yes. हमने schools भी impose कर दिए और एक स्कूल एनवायरनमेंट भी impose कर दी। अब अगर हम इसके ऊपर दूसरी गलती करेंगे कि लेट्स impose होम स्कूलिंग, तो वो भी impose करने वाली बात है। जो ओपन एनवायरनमेंट्स हैं जिसके जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, पिछले 2 दिन से बड़ी बैशिंग हो रही है मेरी फेसबुक के ऊपर जो ओपन एनवायरनमेंट्स हैं वो ये हैं कि गिव पीपल द चॉइसेस। आई वुड लव इफ पीपल हैव द चॉइस ऑफ होम स्कूलिंग और उसको लीगलाइज कर दिया जाए और उसको मेन स्ट्रीम का हिस्सा बना दिया जाए कि जी बच्चा या तो स्कूल जाएगा या तो होम स्कूलिंग करेगा या कहीं और जाएगा। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि वो लर्निंग एक्सपीरियंस से जरूर गुजरे और वो जो बेसिक स्किल्स हैं जो प्राइमरी एजुकेशन में डेवलप होनी है, जो बड़ी क्लियरली करिकुलम में डिफाइन होनी चाहिए, और करिकुलम में सिर्फ यही डिफाइन होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। करिकुलम में बड़ी क्लियर डिफाइन होनी चाहिए कि 5 साल की एजुकेशन के बाद बच्चा किस काबिल जरूर हो, उससे ज्यादा काबिल हो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम उतना हो, फिर चाहे होम स्कूलिंग से हो, चाहे मेन स्ट्रीम स्कूलिंग से हो, चाहे वो नॉन फॉर्मल वो जो एक क्विक एक्सेस वाला फॉर्मूला है उससे हो जाए, नो इशू एट ऑल। लेकिन ये चॉइस होनी चाहिए लोगों के पास। जी ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा जी, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अगर सबके पास एक कागज हो, मेरे पास तो है, अगर किसी के पास नहीं है तो मैं आपको 30 सेकंड दे रही हूँ। 30 सेकंड के अंदर अंदर कागज इकट्ठे कर, एक कागज और एक पेन चाहिए बस इस एक्टिविटी के लिए, बस सिर्फ ये चाहिए। एक पेपर चाहिए, पेपर का साइज भी कोई डिटरमिन्ड नहीं है, छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा ना लेना मुश्किल हो जाएगी। तो फोन का कार्ड यूज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। आपने बस एक पेपर लेना है और उसको ऐसे 4 फोल्ड कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने ये पेपर लिया और इसको एक तय लगाई और फिर एक और तय लगाई, तो ये 4 फोल्ड कहलाता है। तो इसको 4 फोल्ड कर लेना है। अच्छा जी, जितनी देर में लोग अपना कागज और पेंसिल पकड़ेंगे, अगर किसी का कोई सवाल है तो क्विकली पूछ लें। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ही पूछूंगा आपसे एक सवाल। जी सर, जी सर। मुझे ये लगता है कि सबसे बेसिक अगर आइडेंटिफाई करें कि भाई एजुकेशन का सबसे बेसिक रोल क्या है, जो मेरी नज़र में है कि भाई एक इंसान है, इंडिविजुअल है, उसमें गॉड गिफ्टेड उसमें टैलेंट्स मौजूद हैं। अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इस प्रोसेस में, आप उस सारे एजुकेशनल प्रोसेस में, तो ये फेलियर है। अच्छा, लेकिन ये है कि इसको आइडेंटिफाई करने का मतलब वो कोई ऐसा फ्रेमवर्क हम नहीं बना सकते कि इस टाइमलाइन में ये हो जाएगा।
एफर्ट है, फैसिलिटेशन है जो हम कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि करिकुलम प्लानिंग मेरा एरिया रहा है, तो करिकुलम प्लानर्स डे 1 से दुनिया के किसी भी खित्ते में यही कोशिश कर रहे थे, दो बातों की कोशिश कर रहे थे। एक तो ये कि जो उस दौर की नेसेसरी स्किल्स हैं वो जरूर डेवलप हो जाए। वो इसलिए डेवलप हो जाए ताकि बच्चा स्कूलिंग के बाद एक एक्टिव जिंदगी एज अ सिटीजन गुजार सके, क्योंकि सिविलाइजेशंस का हिस्सा बनना है तो सिविलाइजेशंस में जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो जरूर अटेन कर ले। एक हिस्सा ये था। दूसरा हिस्सा ये था कि अगर उसने एजुकेशन के एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पे जाना है तो कम से कम इतना नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज ले ले के अगले लेवल पे जा सके। तीसरी बात जो आपने कही है वो ये थी कि जो मैंने कहा कि सिविलाइजेशन का सक्सेसफुल हिस्सा बन सके, एक्टिव हिस्सा बन सके। ठीक। गलती ये हुई कि उन्होंने बड़ा लिमिटेड फ्रेम ऑफ वर्क रखा कि जी लिखना सीख ले, पढ़ना सीख ले, कैलकुलेशन सीख ले, फिर जैसे 21वीं सदी शुरू हुई तो हमने कहा कंप्यूटेशन भी सीख ले, और फिर इन चारों स्किल्स को, बेसिक स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए वो नॉलेज के किसी एक या दो हिस्सों को लेके आगे बढ़ना शुरू कर दें। वो बायोलॉजिकल साइंसेज में चला जाए, वो ह्यूमैनिटीज में चला जाए, वो आर्ट्स में चला जाए। अब जहां गलती हुई वो ये हुई कि हमने आहिस्ता आहिस्ता उनको नैरो डाउन करना शुरू कर दिया और सब्जेक्ट स्पेसिफिक करना शुरू कर दिया एजुकेशन में। अब वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो हो गए, लेकिन पेरिफेरी में जो स्किल्स बच्चे की डेवलप होनी चाहिए थी एज अ सिटीजन, वो मिस आउट हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक बच्ची ने कहा कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती। अगर एक बच्चा 14 साल पढ़ने के बाद ये कहे कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो ये तो वन ऑफ द बेसिक स्किल्स थी। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ये तो कम्युनिकेशन स्किल्स थी, और ये तो सिखाया जाना था थ्रू एजुकेशन कि पब्लिक स्पीकिंग भी आए। हम बार बार बच्चे को जब क्लास के सामने लाते थे। हालांकि डॉक्टर साहब आप बात की है कि वो बड़ा अच्छा कम्युनिकेट करती हैं। एक और बात जो मैंने उस दिन भी कही थी, आपकी वो स्किल खत्म हो गई है या आपका अपनी उस स्किल पे कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, ये दो अलग बातें। या तीसरी बात है आपका मुबालगा है कि दोनों में से कोई खत्म हो गया। ठीक। लोगों ने आपको इतनी दफा कहा है बिल्कुल ऐसे ही, जैसे लोगों ने मुझे बहुत दफा कहा है कि तुम्हारी रंगत सांवली है, तुम्हारी रंगत सांवली है, तुम्हारी रंगत सांवली है। मेरा अपनी सांवली रंगत से कॉन्फिडेंस खत्म नहीं हुआ। मैंने हर एक को आगे से जवाब दिया है, आई लव इट। ठीक है। अब बच्चों के साथ होता ये है कि तुम तो ये फला लफ्ज सही प्रोनाउंस नहीं करते। उसने एक दफा बोला, उसको कहा, दूसरी दफा बोला, तीसरी दफा बोला, कहा, वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। वो कहते हैं शायद लोग बहुत अच्छा बोलते हैं और मैं अच्छा नहीं बोलता। ठीक है, वो शायद मुबालगा है जो पैदा कर दिया गया, और फिर उसको लगता है कि मेरी ये स्किल ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि कोई स्किल खत्म नहीं होती। कुछ स्किल्स हैं जो वाकई बाय द एंड ऑफ 12 इयर्स और 14 इयर्स। अभी पिछले दिनों एक बहुत प्यारी पोस्ट थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि बच्चे ने फ्री ड्राइंग शुरू की, टीचर ने कहा नहीं 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 नहीं, फूल ये वाला बनाना है और पत्ता ये वाला बनाना है। उसके बाद उसका स्कूल चेंज किया गया, वो किसी प्रोग्रेसिव स्कूल में चला गया, उन्होंने उसको फ्री हैंड दिया, येलो कागज, येलो पेन और फूल और पत्ता बनाओ, तो उसने एग्जैक्टली वही बनाया जो टीचर ने कहा था। तो उन्होंने कहा तुम्हें और कोई फूल बनाना नहीं आता? तो उसने कहा नहीं। तो वो बच्चा जो डे 1 कोई और फूल बनाने लगा था, आपने उसकी क्रिएटिविटी वहां किल कर दी। तो ऐसा मुमकिन है कि हो भी जाए, लेकिन अपने आप को वो अलाइव रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जी, कागज पेंसिल आगे, बिल्कुल आगे। ओके जी। अब पहले पेज के ऊपर, मैं फिर बुढ़ापे का शिकार हूँ, मैं साथ साथ अपने सवाल भी देखूंगी। सबसे पहले पेज, ये जो साइड है आपके पास, आपके पेज की 4 फोल्ड हुई भी, इसके ऊपर एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, जो जिसको कि पता नहीं क्यों मैं सर्कल कहती हूँ, हालांकि ये मोस्टली ओवल होता है। तो चलिए आप ओवल ड्रॉ करें या सर्कल ड्रॉ करें। तो ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल के अंदर नोट डाउन टॉप 7 थिंग्स दैट यू डू। आप अपने दिन में जो 7 काम करते हैं जो आपको याद है, मैं ये 7 चीजें तो जरूर करता हूं, तो वो क्या है?
मैं भी आपके साथ साथ पूरी एक्टिविटी करूंगी। 7 चीजें जो आप दिन में करते हैं इन अ नॉर्मल डे। वंस यू हैव डन इट, जब आपने 7 वर्ब्स लिखने हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है ईटिंग, स्लीपिंग, थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग, और क्या लिखा है, मेकिंग फूड। यस, टॉप 3 को सर्कल। टॉप 3 जो है, मतलब जो जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी की आप बात कर रही हैं या आपकी प्रायोरिटीज? टॉप 3 आपकी प्रायोरिटी, सॉरी, थैंक यू, आपने सही अच्छा सवाल किया। टॉप 3 का मतलब ये नहीं है कि जो टॉप पे लिखे हैं, टॉप 3 का मतलब है योर फेवरेट 3 थिंग्स। जो 7 काम आप तकरीबन रोजाना कर रहे हैं, उसमें से आपकी बेस्ट 3 चीजें कौन सी हैं, आपको सबसे अच्छी 3 चीजें कौन सी लगती हैं? सो आई नोटेड थिंकिंग, राइटिंग एंड वॉकिंग। ठीक है जी। अब दूसरी फोल्ड पे चले जाते हैं। एक साइड पे हमने ये लिखा, अब हम सेकंड साइड पे चले जाते हैं अपने पेपर। सेकंड साइड पे आपने फिर एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना है, और सर्कल जरूर ड्रॉ करना है, उस सर्कल के अंदर लिखनी है चीजें। अब आपने नाम लिखने हैं 7 फेवरेट पीपल। बेशक उनके साथ अपना रिलेशन भी मेंशन कर दें, लेकिन आप अपने लिए लिख रहे हैं, आपको रिलेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद के लिए लिख रहे हैं। Ma'am, from your personal life or the people who influence you? Anywhere. आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके कोवर्कर्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं। 7 लोग जो आपको पसंद है, जिंदा हो। ओके, चलो, ये मैं आपको नहीं दिखा रही। पहले मैंने अपनी 7 चीजें आपको दिखा दी थी, कि शायद से आपको पता चल जाएगा मेरे 7 फेवरेट लोग कौन से हैं। Okay ji. So on the first side we wrote 7 things, on the second side we wrote 7 favorite people. अब 7 favorite में से top 3 circle कर लेने हैं। Top 3 means most favorite 3। चलें जी, अब हम अंदर वाले दोनों folds को ऐसे करके बाहर ले आते हैं। जो बाहर की तरफ 2 folds थे उनको अंदर मोड़ देते हैं, और इन दोनों को जो blank है ये बाहर आ गया। Side 3 पे circle draw करें और list your top 7 skills। आप 7 अच्छे skills कौन से हैं आपके? What are your 7 powerful things that you have? And then circle your favorite 3, top 3, जिन skills के होने से आपको बड़ी खुशी मिलती है, आप कहते हैं हाँ ये तो मैं I'm happy about having this skill। अब जी आखिरी चीज है जो आपने 4th साइड पे लिखनी है, और 4th साइड पे आपने बस 3 लिखने हैं। योर बेस्ट 3 मोमेंट्स ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी के बेहतरीन 3 लम्हे कौन से थे? 3 बेहतरीन वक्त कौन से थे? योर फेवरेट 3 टाइम्स। मैम, पर्सनल, प्रोफेशनल। You were still waiting for those moments। लिख दो। बड़ा मजा आएगा। अभी जब तुम सवालों के जवाब लिखोगे ना, तब तुम्हें मजा आएगा। अगर वो वक्त आने वाला है तो भी लिख दो। मतलब आप जो कमिंग फ्यूचर्स के बारे में लिख सकते हैं, राइट? हाँ, लिख सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि कुछ ना कुछ गुजरा हुआ भी जरूर लिखो जी। अब आपने इस सफ़े को खोल लेना है, और जो चीजें सर्कल की हुई हैं टॉप 3, यानी कि आपके वो काम जो आप करते हैं, और उनमें से जो आपके फेवरेट काम है, ठीक है, वो लोग जो आपको पसंद हैं, और उनमें से वो 3 जो आपके फेवरेट लोग हैं, वो स्किल्स जो आप में मौजूद है, और उनमें से वो 3 जो आपकी फेवरेट स्किल्स हैं। क्या आपके हैप्पीएस्ट मोमेंट नंबर 1 में ड्रॉ लाइंस, अपने फर्स्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट से लाइंस ड्रॉ करें उन सर्कल्स तक, और देखें आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर पाते हैं। क्या आप तीनों बॉक्सेस में एक एक लाइन ड्रॉ कर पाते हैं? अपने पहले हैप्पीएस्ट मोमेंट से लाइन ड्रॉ करनी है, इसी तरह सेकंड मोमेंट से करनी है, इसी तरह थर्ड मोमेंट से करनी है। एंड पे आपने मुझे सिर्फ लाइंस काउंट करके बतानी है कितनी ड्रॉ हुई हैं। अगर टॉप 3 से नहीं कनेक्ट होता तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, अगर 7 में कहीं कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 7 लोग लिखे थे, और आपके एक हैप्पीएस्ट मोमेंट ऐसा है जिसमें टॉप 3 नहीं है, लेकिन उन 7 लोगों में से कोई है, तो फिर डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके जी,
9 स्ट्रेट लाइंस किसके पास, डॉटेड नहीं, 9 सॉलिड लाइंस किसके पास? 3 इवेंट्स थे ना, और तीनों से कम 3 जानी चाहिए थी, तो 9 किसके पास है? जिसके पास भी 9 है वो वेरी गुड, वैस इकबाल जी। और किसके पास है 9 नहीं है? चलें 8 किसके पास है? मेरे पास 9 है, आई शुड टेल, मेरे पास 9 है, ठीक है। 8 किसके पास है? सॉलिड लाइंस, डॉटेड नहीं, सॉलिड लाइंस। आपके 3 बेस्ट मोमेंट से 8 लाइंस कम से कम ड्रॉ हुई हैं विद दोज अदर 3 बॉक्सेस। 7 कितने लोगों के पास है? 7 अच्छा, रोशान के पास है, मेरी कंजबिला के पास है। मेरी अच्छा 7 डॉक्टर साहब मेरी कैलकुलेशन बड़ी खराब है, मुझे लगता है 8 होंगी। 8 है, ठीक हो गया। हाँ। अच्छा जी 7 बहुत लोगों के पास है, वेरी गुड। 6 लोग हो चुके हैं अब तक, नाइस। जी बोलिए। Ma'am, can we have more than 9 lines? सॉरी, Can we have more than 9 lines? यस यस, मैंने तो एक स्टैंडर्ड मिनिमम 9 किया है, मेरे पास खुद एक्चुअली 10 है। मेरे पास 12 है मैम। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल हो सकती है। 9 से हम इसलिए शुरू करते हैं कि 3 बॉक्सेस हैं तो कम से कम एक लाइन तो गई हो ना जी। 12 भी है किसी के पास? हाँ 12 भी है किसी के पास। एक्सीलेंट, ओके जी। 5 पे पहुंचे थे हम, नहीं 6 पे पहुंचे थे। 6 कितने लोगों के पास है? एक है, ओके। 5 दोबारा हैंड रेज को क्लिक करेंगे तो आपका हाथ नीचे हो जाएगा। ओके जी 5, ओके गुड। 5 एक के पास है, ओके। 4 पे कोई नहीं है। 3 एक है, ठीक है। 2 1 पे एक है। एंड हु इज द पर्सन फ्रैंकली स्पीकिंग who could not draw a single line connecting these 4 sections? मुनीबा। Anybody? मुनीबा। मुनीबा मुनीबा आपके पास एक है या आपके पास कोई नहीं है? मुनीबा अपना माइक ऑन कीजिए। मैम मेरे पास 2 डॉटेड हैं। 2 डॉटेड है, सॉलिड लाइन कोई नहीं है? नहीं सॉलिड कोई नहीं। ठीक हो गया, समझ आ गया। अच्छा जी सॉलिड लाइन 2 है मुनीबा के पास। सॉलिड लाइन 2 और किस किस के पास है? बेशक आपके पास सॉलिड नहीं, सॉरी डॉटेड डॉटेड डॉटेड। चलें डॉटेड की काउंटिंग को रहने देते हैं। लेट्स ब्रिंग दिस टुगेदर। हम क्या कर रहे हैं? केन रॉबिन्सन 2 बातें करते हैं। एक तो वो कहते हैं फाइंडिंग योर एलिमेंट, एक वो कहते हैं फाइंडिंग योर ट्राइब। ठीक है। अच्छा अब जो आपका फेवरेट पीपल वाला बॉक्स है ना, उससे जो पहला और तीसरा बॉक्स था ना, योर स्किल्स एंड व्हाट डू यू डू, इन लोगों में से कौन शामिल होते हैं इन व्हाट डू यू डू एंड हु हैव सिमिलर स्किल्स एज यू? इस पे लाइंस ड्रॉ करें। योर फेवरेट पीपल connecting with what do you do and which common skills do you have? जरा अब जरा दोबारा, मैं अक्सर में कोशिश ये किया करती हूँ कि मुख्तलिफ कलर्स की हमारे पास पेंसिल्स या पेन्स हों। तो ये जो फेवरेट पीपल हैं 7 लोग, इनमें से कौन कौन शामिल होता है आपके 7 दिन के कामों में? व्हाट डू यू डू, जो पहला बॉक्स था। अच्छा डॉक्टर साहब शामिल होने को थोड़ा एलेबोरेट कर दें। शामिल होने से मुराद मैं तो ये भी समझता हूँ कि इन्फ्लुएंस भी शामिल। हाँ फिजिकली ठीक हो। फिजिकली who is there with you when you are doing these 7 things in a day? मैम बेशक वो कोई एक भी स्किल में आपके साथ शामिल हो सकते। यस ड्रॉ लाइन। हाँ बिल्कुल, ये हालत हो चुकी है मेरे सफ़े की। ओके जी, अब मैं फिर 5 मिनट में इसको डिब्रीफ करती हूँ। आपके 7 फेवरेट पीपल को हम सिर्फ असेस ये कर रहे हैं अपने तई, हम सब अपने अपने 7 फेवरेट लोगों को असेस कर रहे हैं कि हैव वी चोजन द पीपल ऑफ आवर ट्राइब। ट्राइब से मुराद ये है डू वी हैव द सेम एलिमेंट और सिमिलर एलिमेंट, और डू वी हैव एनीथिंग इन कॉमन? जो 7 काम मैं करती हूँ और उसमें टॉप 3 मेरे फेवरेट हैं,
मुझे ये देखना है कि इन 7 लोगों में से कौन मेरे साथ इसमें शामिल होता है। या दूसरा सवाल इसी बॉक्स के अंदर ये है, आर यू डूइंग योर फेवरेट थिंग्स अलोन। यहां पर मैं ये नहीं पूछूंगी कितनी लाइंस ड्रॉ हुई हैं, यहाँ पे मैं ये पूछूंगी, डू यू हैव समथिंग इन योर लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू डू इन अ डे। क्या आपके पास कोई एक चीज ऐसी है जो आप अलोन कर रहे हैं। मुनीबा अपना हैंड रेज ऑफ कर दो बेटा, अभी तक है, हाथ थक जाएगा, नीचे कर लो। अच्छा, तो अब आपने मुझे ये बताना है किसके पास कोई एक चीज ऐसी है जो वो अकेले कर रहा है एंड हैव नोबडी टू पार्टनर। जी क्या है वो ओके, रोशान के पास भी है, बरीरा के पास भी है, 2 लोग हो गए, तीन लोग हो गए थे। ओके, एनी वन ऑफ यू, 3 लोग हो गए, एक और भी आए थे, 4 हो गए। डॉक्टर साहब मैं भी कुछ काम अकेले ही करता हूँ। अच्छा, वो क्या है, वुड यू एनीबडी हु वॉलंटियर्स टू शेयर व्हाट इज दैट वन थिंग और 2 थिंग्स मे बी जो आपको कोई नहीं मिला कि हाँ इनमें से कोई उस वक्त मेरे साथ नहीं होता जब मैं ये करता हूँ। जी मैं मार्केट जाता हूँ, काफी दफा अकेले भी जाता हूँ और काफी दफा इकट्ठे भी जाते हैं। ठीक है, काफी दफा आप अकेले भी जाते हैं और काफी दफा आपके साथ कोई होता भी है। हाँ। क्या वो उन 7 लोगों में से होता है? हाँ बिल्कुल, फैमिली को चूंकि मैंने एक ही रखा है। That's fine then. कोई और ऐसी चीज जो आप बिल्कुल अकेले कर रहे हैं और उन 7 में से कोई शामिल नहीं? Sorry? Ma'am, watching sunset. Okay, you watch sunset and you watch it alone. ये कौन है? ये कौन है भाई सनसेट? सलसबीला सर। ओ क्या बात है, ये आप अकेले नहीं कर रहे, ये मैं भी कर रहा होता। Okay sir. Physically with me ना? ठीक है। उन 7 लोगों में से आप कभी किसी को साथ बिठा के सनसेट नहीं अभी तक आपने दिखाया? No. अब मेरे कहने पे आज के इस वर्कशॉप के रिजल्ट में एक आपके लिए करने का प्रैक्टिस ये है कि हो सके तो उन टॉप 3 में से या हो सके तो उन 7 में से किसी को अपने साथ बिठा के एक दफा एक्सपीरियंस करो। ठीक है, फाइंडिंग योर ट्राइब की स्ट्रेंथ ये है, समटाइम्स वी फील एज इफ सॉलिट्यूड और अकेले किसी चीज को करना इज वेरी स्ट्रॉन्ग और आप कुछ अरसे तक वो करते भी रहते हैं, उसके बाद आप उसमें तन्हा रह जाते हैं, which can bring the strength down। वो जिस ज़ील से आपने शुरू की होती है, ऐसे ऐसे वो ज़ील नीचे आनी शुरू हो जाती है। वही एक्सपीरियंस जब आप अपने फेवरेट लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं तो इट अगेन मल्टीप्लाइज और फिर से आपको लगने लगता है अच्छा मैं कोई बड़ा मजे का काम कर रहा था। ठीक है, so finding your tribe helps you to do the same things with an excitement। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको बहुत पसंद है, आप अकेले करते चले जाते हैं। मैं ड्राइव, बहुत ज्यादा ड्राइव मैंने अकेले किया, ड्राइविंग में मेरे साथ कोई नहीं होता था। थोड़े अरसे के बाद मुझे लगने लगा कि आई वांट टू शेयर दिस फीलिंग विद समबडी, तो फिर मैंने एक और शख्स ढूंढा जिसको खुद भी ड्राइविंग का बड़ा शौक है। अब मसला ये है कि फैसला नहीं हो पाता ड्राइव मैं करूंगी कि वो, तो फिर मैं कहती हूँ कि यार गाड़ी में 2 स्टीयरिंग व्हील होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ट्राई इट आउट। अच्छा, स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्किल्स आपने 7 लिखी, क्या आपके फेवरेट 7 पीपल शेयर एनी ऑफ दो स्किल्स विद यू? किसी के पास कोई ऐसी स्किल है जो उसके बेहतरीन लोगों में से कोई शेयर नहीं करता, उनके पास वो स्किल नहीं है या वो स्किल में इंटरेस्टेड ही नहीं है? डू यू हैव अ स्किल दैट नोबडी शेयर्स? अच्छा, ये डॉक्टर साहब हम काफी कुछ शेयर करते हैं, मैं रुशान की अम्मा, मतलब काफी एक्टिविटीज हम मिलके करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। देखिए मैंने ना एक स्किल लिखी थी अपनी, लव टू लव। ठीक, दैट्स आई टेक इट एज अ स्किल। ठीक है, और फिर मेरे फेवरेट लोगों में मेरी एक दोस्त थी है सलमा, तो मैंने सबसे पहले उसको कनेक्ट किया। I have this skill and Salma has this skill better than me.
ठीक है, सो फाइंडिंग योर एलिमेंट एंड फाइंडिंग योर ट्राइब. सो लव इज माय एलिमेंट एंड सलमा इज माय ट्राइब. ठीक है, कोई स्किल बताइए जी, बताइए. To understand someone, I feel like मैं लोगों को बहुत easily understand कर जाती हूँ, like हर extent पे जाके, but whenever it comes to me, चाहे वो जो भी हो, nobody gets me कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. फिर मैं सोचती हूँ like maybe मेरा thinking process totally different है सबसे, या क्या ऐसी बात है कि कोई भी मुझे समझ नहीं पाता. ठीक है, कौन बोल रहा है? कौन है ये? कौन बोल रहा है? बरीरा? नहीं, बरीरा नहीं बोल रही. बरीरा बोल रही है? सर अरीजा, आई गेस. दोबारा बोलो. बरीरा. बरीरा मुझे नहीं लगता ऐसे. आपका जो इंटरव्यू था मुझे याद है, बड़ा बड़ा मजे का इंटरव्यू था. अच्छा, नहीं देखिए, उसकी जो बात है ना शायद साहब, उसकी जो बात है वो मैं बिल्कुल समझ गई हूँ. मैंने एक लफ्ज लिखा एम्पैथी. ठीक. वन ऑफ माय स्किल्स इज एम्पैथी. जब लोग मुझसे कोई बात शेयर करते हैं, आई कैन फील एग्जैक्टली कि वो किस चीज से गुजरे होंगे. ठीक है, सो आई हैव एम्पैथी एज अ स्किल कि जब भी कोई मेरे साथ कोई बात शेयर करता है तो मैं अपने आप को उसकी जगह रख के समझ सकती हूँ. आई थिंक बरीरा आप भी अंडरस्टैंडिंग कुछ हद तक इसी चीज को कह रही हैं, राइट? लेकिन आपके फेवरेट 7 पीपल में अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके सामने आप अपनी बात बयान करती हो तो वो आपको आपकी तरह समझ पाता हो. नहीं, ऑल्दो उनमें मेरी सिस्टर्स और मेरी फैमिली आते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि मुझे वो उस तरह से नहीं समझ पाते जैसे मैं जो चीज मैं कन्वे करना चाह रही हूँ एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं वो ले पाते. 2 में से एक बातें होंगी, या तो आप अपने टॉप 3 पीपल में, जैसे मैंने उनको कहा ना, आपने एक एक्सरसाइज के तौर पे ये करना है कि सनसेट किसी के साथ बैठ के देखना है. ठीक है, आपने एक एक्सरसाइज ये करनी है कि आपने अपने टॉप 3 में से खुद चूज करना है कि कौन, और उसको बैठ के एक वाकया सुनाना है, बाकायदा वाकया जो हुआ हो आपके साथ, राइट? और फिर उसको अनपैक करना है, और आपने नहीं बताना, आपने उसको पूछना है कि उसके ख्याल में आप क्या फील कर रही थी जब आप इस वाकये से गुजर रही थी. हम कहते हैं इसको सेल्फ परसेप्शन, ठीक है, एंड पीयर परसेप्शन. पीयर परसेप्शन में आप दूसरे शख्स को अपना वाकया सुनाएंगे और उसको कहेंगे कि तुम्हारे ख्याल में जब ये वाकया हो रहा था तो मैं किस सोच से गुजर रही थी, किस फीलिंग से गुजर रही थी. जब वो अनपैक कर ले तो फिर आपने उसके साथ शेयर करना है कि कहाँ कहाँ उसने आपकी फीलिंग्स को ठीक समझा है और कहाँ कहाँ उसने आपकी फीलिंग्स को मिस इंटरप्रेट कर दिया है. अपने टॉप 3 में से चूज करो और उनके साथ 2-4 दफा ये एक्सरसाइज करो. यू विल फाइंड अ पर्सन हु एग्जैक्टली नोज व्हाट यू फील. ओके, ठीक है, ये छोटी सी एक एक्सरसाइज है जो आपको सिर्फ उन 3 लोगों में से किसी को चूज करके करनी है, सारों के साथ नहीं करनी. बट सिट विद देम. जब हम कहते हैं ना डायलॉग, अच्छा शायद साहब जो हम शुरू में बात कर रहे थे ना, जब वो अराउंड द टेबल डायलॉग होता था ना, तो उसका फायदा ये होता था कि आई नरेट माई स्टोरी, आज मेरे साथ स्कूल में ये हुआ, मेरे टीचर ने ये किया, तो somebody will get it and some of the people will not get it. तो फिर आपका रुख उसकी तरफ हो जाता है कि तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ. तो वो जो मेरा भाई है ना जिसका मैं बार बार जिक्र करती हूँ, एक्चुअली ये जो बात बरीरा ने की है वो है he understands before I say it. तो ये बड़ा जरूरी है कि आपकी जिंदगी में आपके ट्राइब में कोई ऐसा शख्स हो. अच्छा डॉक्टर साहब अगर इजाजत दें तो मैं आपकी सजेशन में बरीरा को एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं कि अगर टॉप 3 पे ट्राई करने के बावजूद बात ना बने तो जो बॉटम 7 है उनमें से किसी को ट्राई करें. हाँ, अच्छा, जो मैं कहती हूँ 2 में से एक बातें होंगी. एक बात ये होगी बरीरा कि आपको अपने टॉप 3 या 7 में से मिल जाएगा, और बी रेडी कि इनमें से कोई नहीं. ठीक है, टेल योरसेल्फ कि मैं ये एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, प्रोबेबली टॉप 3 में से ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम 7 पे चले जाएंगे. लेकिन अगर 7 में से नहीं मिला तो इसका मतलब है
कि यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैपेसिटी जिससे आप सोचती और समझती हैं, एंड यू नीड टू कीप ट्राइंग पीपल। मुझे जाके अपने भाई के बाद वो बंदी अमेरिका में पीएचडी करते हुए मिली, जो मुझे आज लगता है कि हाँ बिल्कुल जैसे मेरा भाई मेरी बात को समझता था, मेरी वो दोस्त मेरी बात को बिल्कुल उसी तरह समझता। So not necessarily कि वो अभी आपकी जिंदगी में हो। अगर उन सातों में से कोई ना मिला, डोंट गेट अपसेट अबाउट इट, कीप लुकिंग, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो बिल्कुल आपकी तरह सोचता समझता होगा। जी अच्छा जी, और कोई स्किल या और कोई एक्टिविटी जिसमें आप अकेले हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट टू नो। कोई स्किल या कोई एक्टिविटी जिसमें आप अकेले हैं। Anybody else? And if everybody has partners, ma'am, can you repeat? Hello. आपकी कोई ऐसे स्किल? जी बोलिए। जी बोलिए। ख्वाब मैं अकेले देखता हूँ। आप अकेले देखते हैं? वो ख्वाब तो अकेले ही देखने हैं ना। पर ख्वाब is not your skill. कौन से वाले ख्वाब? जागते हुए देखने वाले ख्वाब या सोते हुए देखने वाले? हाँ ये बात ठीक है, स्किल नहीं है वो। जो जागते हुए देखने वाले ख्वाब में वो शेयर हो सकते हैं, सोते हुए जो ख्वाब है वो शेयर नहीं हो सकता, राइट? जी अवैस कुछ कहना चाहिए। जी अवैस कुछ रिपीट करो। यस ओके, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपका बॉक्स था 7 स्किल्स का और जो आपका बॉक्स था 7 थिंग्स दैट यू डू डेली, इन दोनों में देखो कि कोई ऐसा पीस खाली तो नहीं रह गया जिसमें you do not have anybody from your 7 favorite people. Ma'am, is it include your energy? Sorry, दोबारा बोलो। जोया कुछ कहना चाह रही है। Include your energy and time. फातिमा, डॉक्टर अफशा, फातिमा, जोया और सोबिया, इनके पास अकेले अकेले करते वाले काम, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। अकेली स्किल्स हैं या अकेले काम है? एक एक करके बेटा बोलते जाओ जरा। अच्छा, यहाँ पे स्किल तो नहीं है बट एक एक्टिविटी है जो मैं डेली करती हूँ, बट वो मैं बाय चॉइस अकेली करती हूँ। आई थिंक कि वो मैं अपना मी टाइम सॉर्ट ऑफ करती हूँ, तो आई डोंट वांट टू ऐड एनीवन इन इट। और मुझे लगता है कि अगर कोई चीज ऐसी हमें रखनी चाहिए जो आप अकेले कर रहे हो दिन में, so that you have the time to think, to rethink about other things without interruption, कि कोई और बंदा वहाँ पे नहीं बैठा हुआ जिसका आपने सुनना है करना, आप बस खुद बैठे हुए। मैं अपना जो लंच है in between my work hours वो मैं रोज अकेले करती हूँ। I don't include any colleague, I don't want to include anyone, तो वो मैं by choice रोज अकेले करती हूँ। उसमें मुझे बड़ा टाइम मिलता है अपने लिए, क्योंकि आप पूरा दिन जब दूसरे लोगों के साथ हो, आप जब दूसरों पे डिपेंड कर रहे हो कि कोई आपको समझे या कुछ भी करे, वो जो टाइम आप 1 घंटा या आधा घंटा अकेले गुजारते हो, आई थिंक वो अपनी सेंस में बहुत एम्पावरिंग होते हैं। आपको बहुत चीजें उसमें रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिलता है। अभी जैसे शायद साहब ने कहा ना ख्वाब, इसी तरह मैं इंतजार में थी कि somebody might say meditation, somebody might say prayers. Meditation, reflection, prayers, any of these things are meant to be done alone. ठीक है, मेडिटेशन आपने अकेले करनी है because that's the time spent with yourself. इसी तरह से प्रेयर्स आपने अकेले करनी है, you and your divine power. इसी तरह से रिफ्लेक्शन जिसको हम कहते हैं, बैठ के अपने दिन के ऊपर रिफ्लेक्ट करना, अपने कामों पे रिफ्लेक्ट करना, ये आपने अकेले करना है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, सजेस्ट कर रही हूँ, योर चॉइस, जो आपने सिचुएशन बयान की है वर्क आवर में लंच, I would suggest do not use that as a time of reflection or meditation. Choose an isolated time, choose another time for your meditation or reflection or thinking with yourself. ये एक बहुत कीमती मौका है जो आप जाया कर रही हैं to interact with people that you do not interact with while you are working. मैंने अपने लंच आवर को इस्तेमाल किया है उन लोगों के लिए जिनसे मैं आमतौर पे कभी बात ना कर रही हूँ या कभी ना मिल रही हूँ, या सजेशन है सिर्फ, नॉट नेसेसरीली एवरी डे। लेकिन जब आप वर्क स्पेस में लंच कर रहे हैं ना,
तो मेडिटेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए अपने वक्त में से कोई वक्त रख लो। आई वुड से कि वर्क आवर्स में जो लंच या टी या कोई भी ब्रेक्स हैं, इनको तो आप ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए बहुत सक्सेसफुली यूज कर सकती हैं, नेटवर्किंग के लिए बहुत सक्सेसफुली यूज कर सकती हैं। I'm just suggesting कि इस वक्त को चेंज करो। हाँ, इसको चेंज करो। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, 2 हाथ और खड़े हुए थे। ये सोबिया और समरा और भी हैं, एक 3 लोग हैं जी। ठीक है, सोबिया और समरा। हम कब तक क्लोज करना चाहेंगे शायद साहब इसको? उससे पहले मैंने ये क्वेश्चंस इनके एड्रेस कर लेते हैं, उसके बाद जो इसका स्टेमिना हो कंटिन्यू करने का वो कंटिन्यू करें, इसका नहीं है। ठीक है जी, बोलिए। ये जो पहला बॉक्स था ना अबाउट थिंग्स दैट वी डू डेली, और क्योंकि लॉकडाउन है और रूटीन ऐसी है, तो मैंने इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी है उनमें आई डू ऑल ऑफ देम अलोन एंड या अच्छा ठीक है, बताओ। अच्छा चलो, मैं आपके लिए सवाल बदलती हूँ। यस, मेरा भी सेम प्रॉब्लम है, मैंने सब कुछ ऐसा ही मैं सब कुछ अकेले करती हूँ। मैं आप दोनों के लिए सवाल बदलती हूँ। Is there anything in those 7 things that you want to partner with somebody? ऐसी कोई चीज है जिसमें आपका दिल करता हो कि यार इस वक्त मेरे साथ कोई होना चाहिए? I make my breakfast, so I do want someone to help me make breakfast. बेटा तुम्हारा दिल ये करता है कि मैंने नाश्ता बना के दिया? सच बोलो। बेसिकली मैम, क्योंकि अभी परसों सुबह मैंने यहाँ काउच पे लेटे हुए अपने आप को कहा कि यार कोई हो जो मुझे कॉफी बना दे। ठीक है, अच्छा सही हो गया, एक ये चीज है। और बताइए। जो भी चीजें दैट्स राइट, वैसे तो चीजें डिफर करती हैं हर दिन, लेकिन जो रोज मैं करती हूँ, राइटिंग अ जर्नल, रीडिंग या म्यूजिक, और गोइंग फॉर अ वॉक, और वाचिंग अ शो। ठीक है, तो ये सब चीजें अकेले करिए। अच्छा, अब मैं एक सजेशन आप दोनों के लिए रखती हूँ कि अगर आप ये अपनी टॉप 7 चीजें जो आप रेगुलरली कर रहे हैं और उसमें से टॉप 3 आपकी फेवरेट भी हैं और आप किसी के साथ नहीं कर रहे, उसमें सिर्फ एक परेशानी क्या होगी। अब मैं आपको एक मजे का पहले छोटा सा एनेक्डोट बताती हूँ। कल मैं एक वेडिंग अटेंड कर रही थी, वेडिंग नहीं थी, एंगेजमेंट थी, और कॉन्टिन्यूसली मैं अपनी दोस्त के साथ वीडियो कॉल पे थी। क्यों? क्योंकि उसके भतीजे की एंगेजमेंट थी, तो उसको दिखाना था मैंने सारी सेरेमनी। वो अमेरिका में बैठी हुई है, तो मैं ये भी सर्विस प्रोवाइड करती हूँ वैसे बाय द वे। अच्छा, जिसने जो जहाँ नहीं होता उसको मैं वीडियो कॉल कर वो सब कुछ दिखा रही होती हूँ यार तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें वीडियो कॉल। अच्छा, उसके बाद मुझे ये लगा कि ये कितनी blessing थी that I did not know anybody in that event and I continuously had my friend with me. आप समझ रहे हो इस बात को? When you feel like कि कोई हो मेरे साथ इस वक्त, मेरी ये जो दोस्त है, थैंकफुली वो एक ऐसी दोस्त है कि जब भी मुझे लगता है यार मैं अकेले वॉक कर रही हूँ बट आई नीड टू टॉक टू समवन राइट नाउ, आई कैन मेक अ कॉल टू हर। अच्छा, तुम फिजिकली नहीं भी हो तो मैं तुम्हें इंक्लूड कर लेती हूँ अपनी एक्टिविटी में। ये केन रॉबिन्सन की फिलॉसफी अपनी जगह, और मी एज अ साइकोलॉजिस्ट एट द एज ऑफ 46 आई बिलीव कि वो जो एक डिजायर है आपकी टू हैव समबडी विद यू इज अ वेरी हेल्दी डिजायर। कुछ फेवरेट करते हुए, ठीक है, मजबूरी में कुछ कर रहे हैं तो और बात है। अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो आप खुशी से करते हैं तो देयर शुड बी समबडी टू शेयर दैट फीलिंग विद यू। जिस तरह मैंने उनको कहा कि सनसेट जिस दिन किसी को साथ बिठा के देखोगी और उस बात को शेयर करोगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगी और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, तो दैट वुड बी अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। तो सात में से कोई एक चूज कर लो। अगर आप सातों अकेले कर रहे हो तो फॉर एक्सरसाइज कोई एक चीज चूज करो कि हाँ, इसमें मैंने इंटेंशनली किसी को बुलाना है और अपने साथ करना है, नॉट नेसेसरली एवरी डे। जी सर, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। वालदा मेरी टीचर थी और
उनको नेचर के साथ, जैसे मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, वो साथ हो ना जब कभी, तो मैं उससे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। और मैं बिल्कुल उसको डिफरेंशिएट करूंगा, वो कंपनी एक अलग फैक्टर है कि वो मेरे साथ हैं, वो फीलिंग एक अलग है। बिल्कुल ठीक है। उनका जो जितना डीपली वो अप्रिशिएट करती है ना, जितना स्पॉन्टेनियसली एनर्जेटिकली वो चीज़ों को मतलब उनको सेलिब्रेट करती है, वो मुझे लगता है कि वो मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो इन्हांस हो जाता है उससे। यही एलिमेंट, यही बात है कि आप अकेले वो कर रहे होते हैं, आप उसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं, आप उसका मजा भी ले रहे होते हैं। द मोमेंट यू एड योर, और फिर मैं कह रही हूँ, यू एड योर फेवरेट पीपल, यू डोंट एड लाइक रैंडमली एनीवन। द मोमेंट in your favorite activity you add your favorite people, तो it enhances। क्योंकि दो चीजें खुशी दे रही हैं अब आपको। मैं अब अपनी बिगिनिंग वाली बात पे वापस जाती हूँ। योर वेलबींग, योर हैप्पीनेस, यू आर फाइंडिंग योर एलिमेंट फॉर योर वेलबींग। अभी हम स्किल्स पे जाते हैं। स्किल्स पे इसलिए जाते हैं कि जो हमने सक्सेस देखनी है ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क एनवायरनमेंट में, हमारे करियर में, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्किल्स। तो आपकी स्किल्स में कौन सी स्किल्स हैं? अब पहले अपने पेज पे ये फोकस कीजिए, कौन सी स्किल्स हैं जो आपके काम से रिलेटेड है। क्या सारी स्किल्स आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, या कोई ऐसी स्किल्स भी हैं जो आपने लिस्ट की हैं टॉप 7 में और फिर टॉप 3 में, जो आपके काम से या आपकी पढ़ाई से, आपके करियर से रिलेटेड है? आर देयर एनी स्किल्स? और क्या उसमें आपके साथ कोई पार्टनर है? Yes, ma'am. जी मैम। I'm not in all of them, but in most of them. In most of them, good. कोई स्किल बता सकती हो बेटा? तो भी कोई स्किल बता सकती हो? मैं जी मैम, मैं पोइट्री करती हूँ और माय बेस्ट फ्रेंड वो भी पोइट्री करता है, एंड वी यूजुअली शेयर पोएम्स एंड रिव्यू फॉर ईच अदर। ठीक है। और वर्क या एजुकेशन से रिलेटेड कोई और स्किल? मैम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, और आई एम एन एक्सप्रेसिव पर्सन। ठीक है। और उसके अलावा प्लानिंग, आई एम रियली गुड एट प्लानिंग थिंग्स। ठीक है। डू यू शेयर दैट विद समबडी? कोई है जो आपके साथ प्लानिंग में आपके साथ शेयर करता हो? नॉट अमंग माय फेवरेट पीपल। अच्छा चलिए, मैं आपको ना एक एनेक्डोट बताती हूँ जिससे आपको समझ आएगा मैं क्या कहती हूँ। मैं जब मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में थी, ये मिशिगन लिखा हुआ है। अच्छा, जब मैं मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में थी तो मैं प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो गई पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन। अब मुझे इवेंट प्लान करने थे, एंड आई एम अ वेरी गुड इवेंट प्लानर। ये मेरी स्किल है। मैं बड़े अच्छे तरीके से फैमिली के भी, ऑर्गेनाइजेशंस के भी इवेंट्स प्लान करती हूँ। नाउ माय फ्रेंड वाज माय फेवरेट पर्सन हु इज एन इंट्रोवर्ट। उसका बिल्कुल दिल नहीं करता था कि मैं उसको इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व करूं। तो आई केप्ट आस्किंग हर कि वो क्या कर सकती है। तो एक दिन उसने हंस के कहा कि अगर तुम इस इवेंट का जो वेन्यू है ना, जो हॉल है, जो ऑडिटोरियम है, अगर तुम मुझे इसके बाहर बिठा दो तो ठीक है, मुझे लोगों के अंदर मत घसीटना। तो आई गेव हर द टास्क टू कलेक्ट मनी और टू चेक द टिकट्स। जो लोग आ रहे हैं, या तो वो उस वक्त टिकट खरीदेंगे तो पैसे देंगे, या उन्होंने पहले ऑनलाइन खरीदी भी है तो वो तुम्हें दिखा देंगे। ठीक है। अब knowing that this person is my tribe actually, and I only need to have that person around जब मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ जो कि हाई एनर्जी लेवल मांगता है, उसके साथ होने की वजह से मेरी एनर्जी हाई रहती है। तो मैं किसी ना किसी बहाने से उसको इंक्लूड कर लेती हूँ अपने काम के अंदर, हालांकि वो काम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इतना मजा आने लगा कि वो हर इवेंट के ऊपर कहती थी कि हाँ, टिकट मैं चेक करूंगी और पैसे मैं कलेक्ट करूंगी, बाकी काम तुम करो। तो चूज योर ट्राइब वेरी इंटेलिजेंटली, वन पार्ट, एंड देन व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एट व्हिच यू आर वेरी गुड, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसमें वीक होते हैं या आप कमजोर होते हैं, उसमें वो बंदा ऐड कर लो।
जो आपके फेवरेट लोग हैं उनको अपनी एक्टिविटीज में ऐड कर लो। समझ रहे हो? एनी अदर स्किल दैट यू थिंक यू हैव बट यू डोंट हैव अ पार्टनर? यस आई हैव। जी बताइए। मेरे नाम बताना बेटा, पहले नाम बताना। फातिमा सरवर मेरा नाम है। जी और मेरी ये स्किल है कि मैं अपनी एक अलग दुनिया जो है वो क्रिएट कर लेती हूँ। यानी मैं छोटी होती थी तो मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन शायद मैंने वो गेन किया और मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिल सका, जिसकी वजह से मैं डिसहार्ट हुई कि शायद मेरे पास हैप्पीनेस के मोमेंट नहीं है। फिर मैंने क्या करना शुरू किया कि मैंने सोचना शुरू किया कि जरूरी तो नहीं है कि आप जो चीज़ आप चाहते हैं वही हो, आप उसको इमेजिन करके भी वो उस मोमेंट का मज़ा ले सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, रोज़ 1 घंटे अकेली बैठकर जो मैंने अब तक अपॉर्चुनिटीज गेन नहीं की, उनको रिवॉर्ड मुझे नहीं मिली, तो मैं इमेजिन करती हूँ और उसका मजा लेती हूँ। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने हकीकत में वो मोमेंट जो है वो मेरी जिंदगी का हिस्सा था और मैंने उसको एंजॉय किया। आपको पता है फातिमा, यू हैव फाउंड योर एलिमेंट। व्हाट मैम? यू हैव एक्चुअली फाउंड योर एलिमेंट। वाह। अगर आप ये कर पाती हैं कि जो कुछ आप करना चाहती थी, जिस मोमेंट में आप रहना चाहती थी, वो मोमेंट आप इमेजिनरी क्रिएट कर लेती हैं और फिर उससे मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ कि शायद मैंने कुछ कर। ओके, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ जिसका जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम दो। जी बिल्कुल। इस स्किल से आप अपना क्या करियर डेवलप कर सकती हैं? मैं वैसे तो एक फिलोसफर बनना चाहती हूँ। मुझे मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ। मुझे यहाँ मैं जिस पॉइंट पे खड़ी हूँ जिंदगी में, मुझे ऐसा लगता है कि एक जिंदगी बहुत कम है। जो कुछ मैं करना चाहती हूँ, स्केचिंग करना चाहती हूँ। फातिमा नाम है तुम्हारा? जी फातिमा, आपको पता है आपने अभी जो जुमला बोला है, दिस इज एग्जैक्टली जो करियर मेरे दिमाग में है इस वक्त तुम्हारे लिए। और उसके लिखने वालों ने ये जुमला लिखा है कि एक जिंदगी में बहुत सी जिंदगियां जी जा सकती हैं। जी बिल्कुल। एंड दैट इज थिएटर। थैंक यू। You can be a brilliant person in theater. You can create theaters. और तुम philosophical theater करो। तुम अपनी imaginary world को स्टेज पे पूरा क्रिएट कर सकती हो बेटा, and you can live multiple lives in one life. Yes, exactly. तुम पूरी एक दुनिया बना दिया करोगी। I'm telling you, तुम मेरी इस एडवाइस को कहीं लिख के रख लो and go for theater. ये बहुत बड़ी एबिलिटी है जो तुम कर सकती हो, एंड ब्रिंग पीपल इनटू इट। वो सारी इमेजिनरी चीजें जो यूनिवर्स तुम क्रिएट करती हो, ब्रिंग इट ऑन द स्टेज। तुम देखो तुम्हें कितना मजा आएगा। ओके, थैंक। अच्छा फातिमा और डॉक्टर साहबा, मैं थोड़ा सा ऐड करूं। फातिमा, आप और सलसबीला और समरा, आपका कॉमन इंटरेस्ट है। इनका कॉमन इंटरेस्ट है ये वाला जो अभी आपने पॉइंट आउट किया ना। तो डॉक्टर साहबा, ये 4 लोग हैं जो मिलके आगे कुछ क्रिएट कर सकते हैं इसी डायरेक्शन। ये सारे एक ही शहर में? फातिमा फैसलाबाद से है। ओके। बाकी दोनों इस्लामाबाद से हैं। ओके। और आप भी इस्लामाबाद से हैं। क्रिएट योर वर्ल्ड। आप लोगों को सीरियसली, अगर फातिमा तुम इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करती हो ना, क्रिएट योर वर्ल्ड, उसको बिल्कुल एक स्टोरी बोर्ड की तरह क्रिएट किया करो, एंड देन you can have physical theater or you can have online things created. और अगर तुम थोड़ा सा सीख जाओ, थोड़ा सा स्किल को डेवलप कर लोगी ना, you will do amazing work. और आज की दुनिया में तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है कि अगर कुछ लोग मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए हैं, एक ग्रुप बना हुआ है जिसको मुझे रिसेंटली किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया, शायद साहब मुझे मारेंगे, मैं शेयर करने लगी हूँ। एनीवे, वो ग्रुप है 3 तलाक याफ्ता औरतों का।
जस्ट इमेजिन, वो 3 अलग जगहों पे रहती हैं, एक शहर में नहीं रहती। उन्होंने एक ऑनलाइन फोरम क्रिएट किया हुआ है और वो वीकली यूट्यूब लाइव करती हैं और तीनों बैठ जाती हैं और तलाक याफ्ता होने पे क्या कमाल के जोक्स क्रैक करती हैं और तीनों अपना मजाक खुद बनाती हैं, ठीक है, और फिर साथ मुआशरे की उन बातों के ऊपर आती हैं कि मजा आ जाता है आपको उनको सुनने का। तो बजाय इसके कि वो इसको अपनी वीकनेस बना के बैठ जाती, दे फाउंड देयर ट्राइब एंड दे फाउंड देयर एलिमेंट। तो बहुत दफा जिंदगी में हम किसी चीज को अलग करके अपनी हिडन उसमें रख लेते हैं और समझते हैं कि पता नहीं लोग इस बात को समझ भी पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। गो अराउंड, यू विल फाइंड पीपल लाइक योरसेल्फ, फाइंड योर ट्राइब एंड मेक इट हैपनिंग। उसी में से अपनी जिंदगी तलाश कर लो। दैट इज द जिस्ट ऑफ द बुक। आप क्या करते हैं, आप शौक से क्या करते हैं, आपको किन चीजों से खुशी मिलती है, फिर ढूंढो वो लोग जिनको सिमिलर चीजों से खुशी मिलती है और फिर इकट्ठे होके आप अपनी सक्सेस डिजाइन करो। द वर्ड इज टू डिजाइन योर सक्सेस। अपना पाथवे क्रिएट करो। हमेशा गूगल के पास सही रास्ता नहीं होता, गूगल मैप्स आपको इधर उधर भी ले जाता है। तो डिजाइन योर pathways, डिजाइन योर सक्सेस, बट फर्स्ट फाइंड योर एलिमेंट एंड फाइंड योर ट्राइब। ठीक है जी, मैं यहीं पे बस करती हूँ एंड आई होप के वो इनसे फीडबैक लेते हैं, उसमें पता चलेगा कि क्या है, ठीक हूँ किसको कितना क्या हासिल हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो क्विक फीडबैक और उसके बाद मैं आपसे ये पूछूंगा कि नेक्स्ट आप सेशन जो है ना किस थीम पे जा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी जुमला मैं कह दूं कि अगर मैंने अपना एलिमेंट ना ढूंढा होता और अगर मेरे पास मेरा ट्राइब ना होता, तो आज जब मेरे माँ बाप भी फौत हो गए और मैं सिंगल थी, तो मेरे लिए जिंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाती। But thankfully, at the right time, right age, I had found my element and I had found my tribe as well. और उस ट्राइब में लोग शामिल होते जा रहे हैं। अभी मुझे ऐसे लग रहा है मेरा ट्राइब बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। काफी बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया। हाँ, And I'm never alone. मैंने मतलब ये जितना लोग आए हैं आज बड़ी दूर से आए हैं कह के हमने डॉक्टर साहब को सुनना है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हाँ, तो चलिए वेरी क्विकली फीडबैक जी शुरू करते हैं। ब्रीरा से शुरू करते हैं। जी ब्रीरा, व्हाट इज योर फीडबैक? सर मैं बस एक ही सेंटेंस कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये सेशन, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव था एंड आई लव टू हियर मोर फ्रॉम यू मैम। और मुझे लगा कि शायद आपने मुझे बहुत सारे ऐसे पॉइंट, एक्चुअली मुझे ना ओवर थिंकिंग की भी कहूंगी कि ओवर थिंकिंग की तो मुझे बहुत ज्यादा आदत है, लेकिन ये है कि मैं क्रिएटिव थिंकिंग भी बहुत करती हूँ। तो आपने मुझे आज सोचने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए हैं, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू जी। उसके बाद जैसे नाम आ रहा है जी, फातिमा। जी मैंने बहुत ज़्यादा सेशंस अटेंड किए हैं और मुझे इस सेशन की सबसे अच्छी बात ये लगी एज अ स्टूडेंट, और मुझे ये अच्छी लगी कि इसमें आपने कोई भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स और ग्रेड्स की बात नहीं की, क्योंकि हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं ना, यहाँ बड़ी ये मतलब आई कांट बिलीव इट इज फातिमा। फातिमा आप बात कर रहे हो? वो कह रही है मुझे खुशी हुई कि आपने बात नहीं की। अब मुझे इतनी खुशी हो रही है इसकी बात सुन के, आई कांट बिलीव इट कि इट इज फातिमा। जी फातिमा, प्लीज कंटिन्यू। मुझे लगा मैंने शायद गलत कह दिया। नहीं, अच्छी बात है। नॉट एट ऑल। जी फातिमा, प्लीज कंटिन्यू। मैंने आपको जैसे बता रही हूँ, मैंने बहुत ज्यादा सेशंस अटेंड किए हैं, मैं इस तरह के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मुझे शौक है। तो हर सेशन का जो होता है ना, उसका इंट्रोडक्शन में यही बताया जाता है आपके अंदर एकेडमिक स्किल्स होनी चाहिए, आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, ये आपकी आपने मुझे अच्छा ये लगा कि आपने इससे रिलेटेड कोई बात नहीं की, आपने जिंदगी के बारे में बताया, आपके एम्स, आपकी स्किल्स। शायद हम कहीं ना कहीं ग्रेड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं स्किल से, और शायद ये जो है ये असल में कॉन्फिडेंस को खत्म करने के लिए ये सही बात।
बिल्कुल ठीक है फातिमा, ग्रेट। बिल्कुल ठीक। हमना खान जी, हमना खान नहीं है तो फिर मानूर फातिमा। मानूर। Yes. Ma'am, actually, thank you very much for actually guiding us in a way because after FSC मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा जो थी ना वो demotivate हुई थी about life and its choices. So like listening to you was very fruitful in a way. Like as a woman, I understand the hurdles that we face, and as actually an individual, जो आपको अपना intellect find करना होता है, वो is very big, it's a very big hurdle. So talking to you was actually very fun. Listening to you, and the activity was very fun in a way कि मैं surprised थी कि some of them, the things that I thought कि मैं लोगों के साथ करती हूँ, वो actually मैं नहीं करती. And things I don't do with them are actually the ones I do with them. So that was actually very मतलब ना, and I will do it again this activity रात को बैठ के. Procrastinating में मेरा एक मैंने लिखा हुआ था उसमें in my activity list. I am a very good procrastinator. मैं procrastinating बहुत ज़्यादा करती हूँ. And I would literally love to listen more from you in the coming future on many things. Thank you, ma'am. जरूर, you're welcome. जी, रुशान। रुशान। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, जी आ रही है। जी, बहुत मजा आया इस सेशन का, और मुझे ये भी पता चला कि जो मेरे काफी सारे स्किल्स है उसके अंदर जो मेरे फेवरेट लोग हैं उनका काफी सारा रोल है, और और मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ कि वो लोग हैं मेरे पास। और शायद मुझे लगता है कोई 7 साल बाद मैं आज वाकई खुश हूँ कि मैं अच्छी जगह से बिलोंग करती हूँ और वो लोग हैं, और बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। Thank you. I'm so happy to know that. कभी वो भूल जाते हैं कि ये लोग क्या करते हैं हमारे लिए, लेकिन फिर जब सोचे तो पता चलता है कि हाँ मैं अगर ये हूँ तो इनकी वजह से हूँ, और काफी सारी चीजें इर्द गिर्द वालों की वजह से होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। So good to hear that. Very good. जी, सल्सबीला राशिद। Yes, ma'am. यही mention करना चाहूँगी. You mentioned so much stuff which deep down I know, but I need some professional जो उस चीज को state करे. So I needed to hear those things, and thank you so much for that, and thank you so much for this session, and we are so grateful. Good. I'm happy I was able to do something. समरा उस्मान। जी समरा बेटे। This session was really good, but जो एक चीज मुझे आज रियलाइज हुई वो ये थी कि अभी तक लाइफ में वो मोमेंट ही नहीं आया जब मैं बहुत खुश हुई हूँ। और even when I was writing those things ना, तो वो भी चीजें इतनी खुश नहीं कर रही मुझे जो मैंने लिखी हैं। समरा, let me comment upon that. शायद सब एक लम्हा मुझे दीजिए। जी 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 बिल्कुल जी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसका मतलब है समरा कि you have something in your mind already जो तुम्हें खुश करेगा। अगर आपको ना पता हो ना, अगर आपको बिल्कुल अपने खुशी के उस पीक लेवल का ना पता हो, तो आप इसमें से किसी भी बात को कह देती इस दिन मैं बहुत खुश थी। इसका मतलब है तुम्हें अपनी खुशी के पीक की बड़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है। तुम्हें पता है कि क्या हो तो मैं खुश होंगी। तो डिजाइन योर हैप्पीनेस, उसको मैंने कहा था डिजाइन योर सक्सेस। यू डिजाइन योर हैप्पीनेस। अगर तुम्हें ये पता चल गया वो लिखते हुए कि यार अभी तक वो लम्हा नहीं आया जिसमें मैं रियलिटी में खुश हो जाऊंगी, तो डिजाइन दैट मोमेंट फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। जी सोबिया। Ma'am, it was really nice to hear from you. It's really nice to see vocal women like you. और उसके अलावा एक्टिविटी भी बहुत फन थी, और I consider myself a really loving person. Like all the people on my favorite people's list, I really love them. But ये जितने भी बाकी सब boxes थे, I hardly could match one straight line and no dotted line. So that kind of scared me. लेकिन
Yeah, I don't know what to make of it because I really love them and I like to spend time with them. But then, my happiest moments and then my skills and the things I do daily, they don't match at all. So, yeah. देखो देखो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आपने सिर्फ ये करना है कि ओके नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम डूइंग दिस, who is the person who can be there? नेक्स्ट टाइम जब मैं अपनी ये वाली स्किल इंप्रूव कर रही हूँ या स्किल पे काम कर रही हूँ, who is the person who can either help me or learn with me? ठीक है, तो जो बात अभी किसी बच्ची ने की थी कि वो लोग हमारी जिंदगी में एग्जिस्ट करते होते हैं और हम कई दफा फोन पे कहानियां भी उन्हीं को सुना रहे होते हैं या शाम को उनसे मिल रहे होते हैं या घर में मौजूद होते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं होता कि यार इस एक्टिविटी में इनको शामिल किया जाए। तो अगर आप 3 लाइंस ड्रॉ कर सकें, दैट्स ऑलराइट। आप अभी भी ये करें कि ठीक है, मैं आइंदा जब ये वाले 2 काम कर रही होती हूँ तो इसमें तो मैं इन 2 लोगों को शामिल कर सकती हूँ, व्हाई नॉट? ठीक है, सो स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मैं अपने फेवरेट लोगों के साथ करूं। मैं फिर उसी चीज को एम्फसाइज करूंगी, हैविंग योर फेवरेट पीपल अराउंड व्हेन यू आर डूइंग योर फेवरेट थिंग्स, इट हेल्प्स, इट मल्टीप्लाइज। ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन 1-2 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ इसमें तो मैं इन लोगों के साथ भी कर सकती हूँ। ऑल द बेस्ट। जी बोलो। यूजली इट्स लाइक जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं या जिनके साथ आई गेट अलोंग, वी डोंट यूजली शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई एक स्किल बता सकती हो अपनी कि ये मेरी स्किल है? जी मैम, एक स्किल तो है, जैसे पोइट्री है एंड माय बेस्ट फ्रेंड वो भी लिखता है और हम शेयर करते हैं और रिव्यू करते हैं। उसके अलावा उसके अलावा आई लाइक टू I've heard that I have good aesthetic sense, so I like to decorate and you like to decorate things. अच्छा, तो what do you decorate? घर पे या कहाँ पे करती हो? घर पे किसी और की भी हेल्प कर देती हूँ अगर किसी को चाहिए हो। I like to organize और घर में आपका फेवरेट कोई बंदा है या घर से बाहर हैं सारे? 7 जो लिखे थे उनमें से कोई घर में है? जी 2 हैं घर में। 2 घर में। My father and my little sister. जी। Okay, perfect. My father was my favorite person. अब क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं इस लिस्ट में उनका नाम नहीं लिखती। तो my father was my favorite person and I always loved to redesign the rooms. ठीक है, कि मैंने कमरों की सेटअप बदल देने होते थे। तो my father was the best person जिन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहना अगर मैंने उनके कमरे का सेटअप बदल दिया। ठीक है, तो मैं उनके कमरे का सेटअप बार-बार बदलती थी। हर 2-3 महीने के बाद मैं उनके कमरे का सेटअप बदल देती थी एंड ही वुड सिट विद मी एंड ही वुड टॉक, ये अब तुमने क्या किया और ये ऐसे क्यों किया ये। सो ही वाज देयर इन द एक्टिविटी विद मी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे, बेशक मैं खुद ही बदलती थी, लेकिन फिर हम उस पे बात करते थे, फिर अगली दफा मुझे याद होता था कि अच्छा यार उनको यूं अच्छा लगता है। तो जरूरी नहीं है कि जब आप वो कर रही हैं तो वो मौजूद हैं, लेकिन उस एक्टिविटी का हिस्सा हैं। So while you decorate, you can decorate anybody's place. You can decorate anything for anyone. ठीक है, मैं केक्स बड़े अच्छे डेकोरेट करती थी, तो मैंने एक दफा पैनकेक भी डेकोरेट कर दिया। तो उन्होंने कहा ये पैनकेक को तुम केक कहते क्यों, ये तो फीका होता है। तो but he was in the activity, right? Okay जी। जी जोया। जी सर। नेक्स्ट जोया। श्योर कि किस टाइप का होगा, बट आई एम ग्लैड कि मैंने अटेंड किया। और अगली दफा तो मैं खुद पूछा करूंगी कि नेक्स्ट सेशन कब होगा, कि मैं रेडी रहूं इस सेशन के लिए। और काफी चीजें रिकंसीडर करने को मौका मिले। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी है कि वो जैसे मैंने अपनी एक एग्जांपल शेयर की थी लंच वाली, तो वो मैं एक पर्सपेक्टिव से देखती थी। आपके थ्रू मुझे पता चला कि देयर आर सो मेनी अदर पर्सपेक्टिव्स जिनको मैं कंसिडर कर सकती हूँ, जो शायद मैं ना सोचती अनटिल इस सेशन में ना होती। इसी तरह देयर वर मेनी अदर थिंग्स एज वेल। और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा है आपके
the students and for the people who are still studying. और ग्रेजुएशन से पहले ही उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं जिसमें वो जाके ये चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं और सीख सकते हैं जो मैं जब स्टूडेंट थी तब नहीं थे। ऑल्दो मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ बट 3 साल पहले भी इस तरह का कुछ भी नहीं था। सो इट्स गुड टू नो कि सब कुछ काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सेशंस एज वेल। थैंक यू। वेरी गुड। ठीक। अच्छा, मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेंट थे उनकी फीडबैक तो कंप्लीट हो गई है, जो मौजूद हैं। आपकी फीडबैक भी, आपका कमेंट भी चाहिए। अच्छा जी, मुझे मज़ा ये आता है कि मैं ये एक्टिविटी मिड करियर लोगों के साथ भी कर चुकी हूँ, स्टूडेंट्स के साथ भी पहले की है और फिर एक दफ़ा हमने अपने दोस्तों के सर्कल में भी किया। जी जी। मुझे आज जितने रिच रिस्पॉन्सेज मिले हैं ना, आई एम सो हैप्पी कि ये सारा ग्रुप, मुझे नहीं पता आपने कैसे इकट्ठा किया है, लेकिन आपने जैसे भी इकट्ठा किया है, ये सोचने समझने वाले लोग हैं सारे। और ये सब डॉक्टर साहब, ये फाइंडिंग योर ट्राइब, इसमें मेरा कबीला बहुत है। हाँ, ये मुझे इतनी खुशी हुई है कि एवरीबडी पार्टिसिपेटेड वेरी एक्टिवली एंड रिस्पॉन्डेड वेरी एक्टिवली, इसलिए मुझे बड़ा मजा आया। अगर वो आगे खामोश सा तबका बैठा हुआ हो तो हमें भी परेशानी होती है कि यार हम कोशिश किए जा रहे हैं, कोई बोल भी नहीं रहा, कोई पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा। मुझे तो बहुत बहुत मजा आया है, डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे लिए ना, मैं इन बच्चों को कह रहा था कि हम डिले कर रहे हैं। हमारा, मेरे जहन में जो था ना कि पैरेलल लर्निंग स्पेस का जो किक स्टार्ट जो होगा इवेंट, वो ये होगा डॉक्टर अफशा का, क्योंकि ये लॉजिकली, मतलब वी कैन स्टार्ट विद दिस थीम एक्चुअली। हाँ, सही है, पहली बात ही है। और इस पे जो हमारे सर्कल में जो नॉन लोग थे जो मतलब बेहतरीन इसको कर सकते थे, वो यही था। और ये आज मुझे लग रहा है कि वो हो गया ना, तो ये एक नेक्स्ट टाइम जब होगा तो हैप्पी मोमेंट में मैं ये जरूर लिखूंगा। थैंक यू। That's really great moment. That's such a pleasure. Thank you very much. You're welcome.